Mr. Respected Mr. Sudesh More, sir, Managing Director of Dream Systems Innovation Private Limited, Dr. S.C. Chaube, sir, Coordinator TechCube 3 RGPV Bhopal, Dr. Rajiv Arya, sir, Director, Truba Institute of Engineering and Information Technology Bhopal, Professor Meher Srivastav, Head of the Department EC and EX, faculty members, staff members, students from various RGPV affiliated colleges. A hearty good afternoon to all of you. I, Abhishek Agvekar, Assistant Professor, Department of Electronics and Communication Engineering, feel privileged to welcome you all in the one-week workshop on Internet of Things using Arduino with online simulation on Tinkercad, organized by Truba Institute of Engineering and Information Technology in association with Rajiv Gandhi Pradyogiki Vishwavidyalaya under TechCube 3. Truba Group of Institute is well-known name in the field of technical education from last 21 years. Truba Group always emphasize on the enhancement of technical knowledge of the faculty members and students by organizing various workshops by the eminent speakers from industry as well as technical education. Following the legacy of lighting lamp in the technical education, we are organizing this event from today. I would like to invite Dr. Rajiv Arya sir, Director, Truba Institute of Engineering and Information Technology, Bhopal, to deliver the welcome address. Thank you, Abhishek. Good afternoon, everyone. Mr. Suresh More, Managing Director, Dream System Innovation Private Limited, and resource person of this workshop. Dr. S.C. Chaube, Coordinator TCube 3 RGP Bhopal, faculty, staff, and a student of distinguished institutes. On behalf of Truba Group of Institute, I feel honored to welcome all our guests, faculty members, and students of distinguished institute for participating in this one-week workshop on the topic Internet of Things using Arduino with online simulation on Tinkercad. We all must be highly thankful to RGPV for providing such a platform which is highly beneficial for teaching fraternity, and of course the students are also benefited with these type of knowledgeable sessions by interacting with the eminent industry professionals and academicians. I would like to thank RGPB for sponsoring this workshop. I also express my gratitude to Dr. C. Chaube sir, whose guidance and continuous support encourage us to learn and share the knowledge about the new technologies. As we all aware that in today's scenario, each and every device is somehow dependent on Internet of Things, directly or indirectly, which integrates hardware, software, and network into a whole system. The Arduino IoT Cloud is designed to help people create great things with ease. It is as simple as connecting a device, creating properties, and a dashboard to monitor it. I am sure that this 1 week duration, you will definitely learn to work in Arduino IDE environment with the simulation on Tinkercad, which is really an excellent tool for learning the basic of Arduino programming and circuit design for creating digital designs that are ready to be 3D printed into physical objects. We will also learn basic editing tool, text editing, drawing, solid modeling, and rendering tools. This 3D modeling software offers parametric and freeform editing tool. It also allows students to design their own space or pick shapes to subtract from their properties, providing an easy way to create arches or holes using negative space as a tool. I extend my gratitude to Mr. Sudesh More, Managing Director, Dreams Innovation System Private Limited. It is a great pleasure for our institute that you accepted our request and taken out time out from your busy schedule to guide our participants by giving practical exposure on Internet of Things. I congratulate the organizing team for selecting such a relevant topic for the workshop.
I hope that this workshop will definitely add value in academia and ensure that all the sessions will be highly fruitful and knowledge worthy for you. Thank you all. Over to you, Abhishek. Abhishek, your mic is off. Sorry. Thank you, sir. RGPV TechCube 3 is targeted to improve the quality of technical education in approximately 180 affiliated engineering institutes across Madhya Pradesh by introducing enabling mechanism for faculty empowerment, student learning, enhancement, industry relation, and synergetic efforts to all stakeholders. I would like to invite Dr. S.C. Chaube, sir, Coordinator TechCube 3 RGPV, to say few words. Thank you, Abhishek. Sri Shyam Rathod ji, member BOG of Truba Group of Institutions. Professor Rajiv R, Director TIET. Expert of the day, Sudesh Moreji, HOD Electronics Department, Neha Srivastava Madam, Abhishek ji, and all the faculty members, HODs sitting here, and all students who are participating from different affiliated institutions under TechCube 3. Technical Education Quality Improvement Program, which came on the board in October 2017 and supposed to end by 30th of September this month, but it has been extended by another 6 months, and MHRD has given another opportunity for the affiliated institutions to empower themselves. RGPV TechCube 3 has been facilitating all the times to all its affiliated institutions to empower their faculty and students in the different areas, maybe in innovation, maybe in startups, maybe internship, even patent also. Any faculty members who have applied for the patent, all the patent fees can be reimbursed by TechCube 3. Even if I would like to request Professor Arya, if your students are interested to get enrolled in IIT Mumbai, some of the courses being run by them, and the course fees is maybe 400, 500 or 1000 for 4 weeks, 6 weeks or 12 weeks. In all these computers, fundamentals, emerging areas, students can get enrolled and TechCube 3 will make the payment in advance to IIT Mumbai. One of the institutions has come and we are going to make the payment to IIT Mumbai on behalf of the students. So there are other dimensions where in these 6 months institutions can think of getting the advantage of TechCube 3. Another advantage is that if any one of the faculty members have applied for a Scopus journal, so some of the journals are not free. We have to pay something. So for the publishing the paper in the journals, Scopus journal, that payment can be made by TechCube 3 to all research scholars or the faculty members. So it is kind of encouragement that we are providing to all faculty members. Only the faculty members has to work in R&D and teaching, innovations, startups. Even each faculty member is a part of training and placement. Though there is one training and placement officer at the institute level, but in my view, that every faculty member is a part of training and placement. He must contribute. Alone, TPO cannot ensure the placement of all our students. One faculty member of department, he knows what are the different areas, different scenario where he can place the students. He can ensure the placement of the students. And even institute can give a list of the industries, MSMEs, or the leading industries where the students should know at least these are the core industries, these are software industries where he can apply and get a job.
So all these efforts where TechUp3 is a partner, any effort made by institute, TechUp3 will be happy to support all in all way. And this particular programs IoT is really, really very, very interesting to every students wherever any such programs are organized. Even one of the programs, Mr. Sudesh More was the expert for 14 days, and you will surprise that getting the feedback from the students. The students were so happy that they said, "Sir, we have got everything." Even those who are working on the Proteus, they said that we're not knowing why we're doing on the Proteus softwares and how this IoT. Every time we think that yes, when we establish a IoT lab, we have to spend lakhs of rupees. But I tell you that the expert which you have invited, he will tell you that even with this softwares or the open softwares which are available, that will help you in setting the IoT lab. So this IoT lab, unless you set up a IoT lab in a computer department, IoT department, a computer department, your student will not have feel of this IoT. And once after this deliberation of 2 days, 3 days, I request all the department to set up the IoT lab, and this IoT lab will be sent it to the application of that particular department. And anytime Sudesh More is very, very supportive. Anytime you seek any kind of support, he is always ready to extend his help, support. So this is the right time that we can take the lead, and this is the right time that we can support Atmanirbhar Bharat, self-reliant India, and where every citizen of this country, every student of this your institute must be independent. And he can become independent only he is skilled. He gets acquires some skill. So he becomes autonomous. So that kind of skill that you can provide to students with the support of all experts which you had been invited earlier, and with Mr. Sudesh More. So with all these words, I thank to all participants and speaker experts Sudesh More ji, and management of the Tuba Group of Institutions, Director Rajiv Araji, HOD Electronics, Abhishek ji, and all faculty members who are associated directly or indirectly in conducting all TechUp3 programs in Tuba. And my last request to students that be here, and after the end of the programs, you will realize when you give your feedback, you will really find that you have got something. I am confident that if you continuously sitting with the experts, I am very much confident the way he will deliver, the way he will tell about the different softwares, you will enjoy and you will gain some results. Okay, thank you once again. Thanks to all of you very much. Thank you. Over to you, Mr. Thank you, sir. Thank you, sir. Today, internet application development demand is very high. So, IoT is a major technology by which we can produce various useful internet applications. IoT is a network in which all physical objects are connected in the internet through the network devices or routers and exchange data. IoT allows objects to be controlled remotely across existing network infrastructure. IoT is a very good and intelligent technique which reduces human efforts as well as easy access to the physical devices. This technique is also an autonomous control feature by which any device can control without any human interaction. Our speaker for today's event, Mr. Sudesh More, is Managing Director of Dreams System Solution Private Limited. He also founder of Dreams, which was founded in year 2010. Dreams System Innovation Private Limited is an embedded system solution and education service provider company based in Bhopal. Being the head of Dreams, he is the source of inspiration for whole team. Commonly known as Techno Manager, he completed his BTech from NIT Bhopal, that is Manit Bhopal, and did his post-graduation in management at IIM Indore. He is expert in robotics, circuit designing, image processing, MATLAB, and embedded systems. Besides, he has keen interest in current affairs, macroelectronics, and marketing. Presently, he is working as many latest technologies and related products like IoT, industrial robotics, industrial automation, home and office automation, smart wireless module for IoT,
smart attendance system, smart solar power generation management system, etc. Our second speaker, Mr. Manish Nim, is working as technical faculty and research associate in Dream Solution Systems Innovation Private Limited, Bhopal. I would like to invite Mr. Sudesh Morisa to start the session. Thank you very, very much to all of you and respected director sir, respected HOD ma'am, respected Chobe sir for such kind introduction and kind description about my last workshop. Respected Abhishek sir. First of all, I from heart thank all of you for inviting me for this session. And maybe all of you may not know, but we still have a very long association with Truba Institute. We've been like every year we had at least one workshop as Truba, so that association is always continuing, and I'm very thankful for you that you are continuously inviting me for such sessions and for such events. And we are doing just a small initiative to educate students and take them forward. We are also working in very lot of industrial products. So because of that experience, it gives us a lot of understanding how to develop product. And like Chobe sir already said that for IoT Lab, we don't need a very heavy investment. We just need to get started with small things, and based on very few content, very few kits, we can become expert in IoT hardware design, implementation, and many things related to that. Also, I would like to thank RGPV TechQuip, because I am continuously being invited at different occasions, right from Manit, SysTech, UIT, RGPV, and many other occasions as well, for such online sessions. So, Chobe sir, definitely such kind of initiative from TechQuip is benefiting thousands of students across the university. I'm not sure about whole India, but at least in MP, many students are benefiting a lot out of it. And post this COVID, now we know that this online is the norm, and we should learn how to get used to it. And the classroom as well as off classroom learning is going to happen in the future. So there's a lot to discuss. I have a full 7-day session, and I would like to invite also the faculty members to be a part of it. If you are interested to learn this new latest technology, obviously the session will be designed from very basic so that even students can understand. But we also share a lot of industrial experience and our own experience of developing products, and what is missing in our academics, and what is required in this era of internet where everything is available open source. A lot of softwares, free softwares are coming up, and there are a lot of communities working across the world who are interested in putting all their resources directly on internet and learning and helping the community across the world to learn on their own without paying a penny. So I think such sessions will be very fruitful to all of you. Obviously, at the end of this session, students will give their feedback, and I hope that they'll also start working on IoT as soon as possible. So I once again thank you to all of you for inviting me, and I suppose that I should start the session from now itself. Yes, sir. Abhishek sir, should I start the session now? Yes, sir. Okay. So thank you so much once again. So participants, let's start with the session. I'll share my presentation. Okay, so my introduction is already being given, and very well introduction. This is the number. If any student has any problem and any doubt, they can anyway contact us. So for 7 long days, we'll be in touch with each other, and we'll be learning a lot of things. So let's get started. So I'll prefer to have our session in English language because that is more comfortable for students as well. तो हम बीच-बीच में हिंदी और इंग्लिश का मिक्सचर करते रहेंगे.
so that everybody is on the same page, सभी को सारी चीजें अच्छे सामने आए। आई अंडरस्टैंड कि अब तो वैसे तो काफी सारे पार्टिसिपेंट्स जो हैं उन्होंने बहुत सारे ऑनलाइन सेशन अटेंड कर ही लिए होंगे, फिर भी कुछ छोटी छोटी फॉर्मेलिटीज हम देख लेते हैं। तो आप देख सकते हैं कि ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में अगर हम कोई भी लेक्चर सेशन अटेंड करते हैं तो इसमें सबसे बड़ी समस्या ये होती है कि इट्स अ वन वे काइंड ऑफ सेशन, जिसमें हम डायरेक्टली पार्टिसिपेंट से इंटरेक्ट नहीं कर पाते। और हमारे पास बहुत अच्छे अच्छे टूल्स हैं जिन टूल्स की मदद से हम इंटरेक्शंस को बढ़ा सकते हैं। ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में हम जानते हैं माइक्स सभी लोग को म्यूट रखने हैं, अगर माइक अनम्यूट करेंगे तो काफी लोगों को डिस्टर्बेंस होगा। और जैसे जैसे सेशंस में मैं आगे बढ़ता जा रहा हूँ तो पार्टिसिपेंट्स काफी बेटर होते जा रहे हैं। सो फिर भी जस्ट वार्निंग कि अगर आप माइक है तो आप उसको प्लीज म्यूट कर लें। वीडियो कई पार्टिसिपेंट्स को पता नहीं होता है कि आपके जो लाइव वीडियो जो चालू है उसकी वजह से आपकी बैंडविड्थ थोड़ी स्लो हो सकती है, जिससे आपको काफी सारी चीजें शायद समझ में ना आए। तो आप वीडियो को भी अगर जरूरत नहीं हो तो उसको म्यूट कर लें। आप मेरे सेशन के बीच में कभी भी कोई भी सवाल पूछ सकते हैं, वो मेरे लिए ज्यादा कंफर्टेबल होता है क्योंकि एट द एंड ऑफ द सेशन सारे क्वेश्चंस आने से वो एक कंटेक्स्ट मिस हो जाता है। हम एंड ऑफ द सेशन भी क्वेश्चंस एंड आंसर सेशन को फॉलो करेंगे, बट अगर ड्यूरिंग सेशन आपको कोई डाउट है तो चैट बॉक्स में आप टाइप कर सकते हैं। मैं ऑलरेडी मोबाइल फोन से लॉग्ड इन हूँ तो मोबाइल फोन पे आपके चैट में देख सकता हूँ। तो आप चाहें तो कभी भी मुझे जो है बीच में क्वेश्चन पूछ सकते हैं। जैसे जैसे मैं आगे बढ़ूंगा मैं आपसे क्वेश्चंस के आंसर देता रहूंगा। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। हाउएवर जैसे कि हम जानते हैं ये जो हमारा सेशन है वो टिंकरकैड पे रहेगा, और टिंकरकैड एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है जिसके बारे में हम डिटेल से डिस्कशन करेंगे। मेरा हमेशा कोशिश रहती है कि जब भी मैं कोई सेशन लूं किसी भी टॉपिक पर, तो जब तक आप प्रैक्टिकल हैंड्स ऑन नहीं करते हैं तो वो सेशन काफी बोरिंग और मोनोटोनस हो जाता है। काफी रिसर्चेस बताती हैं कि अगर आप टोटल थ्योरेटिकल सेशंस रखते हैं तो आपका जो गेन जो आप उसमें जो गेन कर पाते हैं वो हार्डली 20 to 30% होता है, जबकि जब आप साथ साथ में प्रैक्टिकल करेंगे तो उसमें आप जो लर्निंग्स रहती हैं वो अप टू 70% तक आप सीख लेते हैं। तो इसीलिए मेरा हमेशा कोशिश रहती है कि सेशंस के साथ साथ में हम प्रैक्टिकल भी करते रहें, और थैंकफुली हमारे पास एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म अवेलेबल है टिंकरकैड, जिसमें हम बहुत सारी चीजें सिमुलेट कर सकते हैं। तो इस पूरे सेशन में मेरे सेशन के साथ साथ सभी पार्टिसिपेंट जो हैं प्रैक्टिकल भी करेंगे। हम इस सेशन को इस तरीके से ऑर्गेनाइज करेंगे कि आप मेरे साथ साथ प्रैक्टिकल कर सकते हैं। आपको डेफिनेटली इसमें कुछ डाउट्स आएंगे तो आप डाउट्स चैट बॉक्स में भी टाइप कर सकते हैं। क्योंकि हमारे इस सेशन में पार्टिसिपेंट्स बहुत ज्यादा नहीं है तो हम टिंकरकैड में एक फैसिलिटी प्रोवाइडेड है जिससे हम एक क्लासरूम क्रिएट कर सकते हैं। तो आप टिंकरकैड में जितने भी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे वो क्लासरूम में जाके हम भी देख पाएंगे और हम आपको वहां पे गाइड कर पाएंगे। तो आज का हम एक बेसिक स्टार्ट लेंगे टिंकरकैड के साथ, और इंटरनेट को भी हम देखेंगे, और साथ साथ में आगे फिर मैं आपको सारे इंस्ट्रक्शंस देते जाऊंगा और उसमें हम बहुत अच्छी लर्निंग लेने की कोशिश करेंगे। हाउएवर इस लर्निंग के लिए बहुत जरूरी है कि आप लोग लैपटॉप से ही इस सेशन को अटेंड करें। मैं समझ सकता हूं कि आज काफी सारे स्टूडेंट जो है वो मोबाइल फोन से अटेंड कर रहे होंगे, बट नेक्स्ट क्लास में कोशिश करें लैपटॉप या डेस्कटॉप से आप इसको इस सेशन को करें, क्योंकि टिंकरकैड जो प्लेटफॉर्म है वो मोबाइल फ्रेंडली नहीं है। मोबाइल पे आपको सिमुलेशंस करने में थोड़ी सी दिक्कत आ सकती है। तो इसके साथ हम आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। छोटा सा डिस्क्लेमर है, तो जो भी कंटेंट मैं इन स्लाइड्स में शेयर कर रहा हूँ वो कॉपीराइट है। कॉपीराइट मेरा कॉपीराइट रहेगा, हमारी ऑर्गेनाइजेशन का। इसका अनऑथराइज कॉपिंग और डिस्ट्रीब्यूशन प्रोहिबिटेड है। हाउएवर फॉर लर्निंग पर्पस के लिए जितने भी पब्लिक वीडियोस हैं वो मैंने इस प्रेजेंटेशन में ऐड किए हुए हैं, जो हम अभी साथ साथ में देखे जाएंगे। ये सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए है। एज ए स्पीकर हम इसका कोई कॉपीराइट क्लेम नहीं करते हैं। जो भी ऑफिशियल लिंक्स हैं वो पब्लिक डोमेन की वो साइट पे ही आपको मेंशन रहेगी, और साथ साथ में वो लिंक्स भी मैं शेयर करता रहूंगा, ताकि इस प्लेटफॉर्म के समय चूंकि वीडियोस बहुत अच्छे से प्ले नहीं होते हैं तो आप अलग से उस लिंक को क्लिक करके भी इन वीडियोस को देख सकते हैं। तो इसी के साथ हम स्टार्ट करते हैं। सो बेस्ट वे टू स्टार्ट इज टू सी अ वीडियो। इट्स अगेन इंट्रोडक्शन ऑफ IoT, क्योंकि IoT हमारी लाइफ को बहुत बदलता जा रहा है। तो लेट्स सी कि हमारा जो ये वीडियो है ये क्या है। तो मैं इस वीडियो की जो लिंक है चैट बॉक्स में अभी कॉपी कर लेता हूँ ताकि आप लोग भी इसको देख सकें।
ओके, सो आई होप सभी लोग ये मेरी स्क्रीन देख पा रहे हैं जिसमें मैं वीडियो प्ले कर रहा हूँ। आपकी जो लिंक है वो मैंने चैट बॉक्स में भी आप सभी के साथ शेयर की हुई है। वीडियो थोड़ा स्लो रहेगा और ऑडियो इन जनरल मेरे पास एक्सपीरियंस में क्लियर नहीं रहेगा, तो आप इसको अलग से अपने अलग से टैब में भी इसको ओपन कर सकते हैं। हर सेशन को हम आराम से करेंगे स्टार्टिंग में, सो दैट सभी लोग इसको फॉलो कर सकें। इस वीडियो में बेसिकली IoT का इंट्रोडक्शन दिया हुआ है और हम इसको फिर से समझेंगे कि IoT हमारी लाइफ में कैसे क्या चेंज लाने वाला है, वो सारी चीजें हम इस वीडियो में देखेंगे। We have all heard of the term Internet of Things or IoT. As it is becoming an increasingly growing topic of conversation, let's try and understand what exactly is Internet of Things. You may be watching this video on your PC or phone and it is connected to the internet. Internet on your device could be connected through broadband or Wi-Fi. Simply put, this is the concept of basically connecting any device with an on-off switch to the internet. There is people-to-people connection, there is people-to-machine connection, and then we have machine-to-machine connection. Internet of Things or IoT refers to billions of physical devices around the world that are now connected to the internet, collecting and sharing data. As the price of processors and wireless networks go down, technology is becoming cheap and penetration of smartphones are skyrocketing. It has become possible to turn anything into a part of the Internet of Things. It is like adding a level of digital intelligence to the devices that would allow them to communicate with a human being or with another machine. And that's not all. According to reports, there would be more than 26 billion connected devices by 2020. That's a lot of connections, isn't it? But why on earth do we need so many connected devices? Let's take another example. Mike has to go for a morning meeting. His alarm clock wakes him up at 7 a.m. and notifies the coffee maker to start brewing coffee. When he goes to take a shower, the geyser was already notified and warm water was available for Mike, saving his time. Mike's car is connected to his calendar and tells him to take the best route to avoid traffic. If the traffic is heavy, his car might send a text to another party notifying them that Mike will be late. The Internet of Things can be applied to transportation, production, smart cities, and many other projects, saving us energy, time, and reducing waste. We are yet to completely understand how Internet of Things will impact our lives. What would be the opportunities and challenges that will come with it? For now, the best thing that we can do is to educate ourselves about Internet of Things, because IoT storm is here to stay, and the new rule of the future is going to be anything that can be connected will be connected. तो आपने वीडियो देखा। आई जस्ट सॉ कि अवधेश सैनी ने एक मैसेज किया कि सर स्क्रीन क्लियर नहीं है। अवधेश, आई थिंक आप ही अकेले ने मैसेज किया है, बाकियों ने नहीं किया है। सो आई थिंक इट इज प्रॉब्लम फ्रॉम योर साइड। सो आपके जितने भी ऑनलाइन सेमिनार्स होते हैं उसमें अच्छा इंटरनेट कनेक्शन होना बहुत जरूरी है, और आई कैन अंडरस्टैंड कि मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट जो है मोबाइल इंटरनेट से ही इसको ज्वाइन कर रहे होंगे। तो काफी सारे नेटवर्क्स में एयरटेल की इंटरनेट स्पीड थोड़ी सी अच्छी है, बाकी आप पर्सनली बेटर जानते हैं कि किसका इंटरनेट स्पीड अच्छा है। तो प्लीज चेक कि जो है कि आपके साइड में इंटरनेट इश्यूज ना हो। तो मैं एक बार फिर से इस वीडियो को प्ले करूंगा बिकॉज थोड़ा सा शेकी है वीडियो। सभी लोग आई अंडरस्टैंड कि इंटरनेट की वजह से सबको थोड़ा स्लो प्ले हो रहा। तो हम इसको एक बार फिर से प्ले करके हम फिर इसके आगे बढ़ते हैं। We have all heard of the term Internet of Things or IoT. As it is becoming an increasingly growing topic of conversation, let's try and understand what exactly is Internet of Things. You
may be watching this video on your PC or phone and it is connected to the internet. Internet on your device could be connected through broadband or Wi-Fi. Simply put, this is the concept of basically connecting any device with an on-off switch to the internet. There is people-to-people connection, there is people-to-machine connection, and then we have machine-to-machine connection. Internet of Things or IoT refers to billions of physical devices around the world that are now connected to the internet, collecting and sharing data. As the price of processors and wireless networks go down, technology is becoming cheap and penetration of smartphones are skyrocketing. It has become possible to turn anything into a part of the Internet of Things. It is like adding a level of digital intelligence to the devices that would allow them to communicate with a human being or with another machine. And that's not all. According to reports, there would be more than 26 billion connected devices by 2020. That's a lot of connections, isn't it? But why on earth do we need so many connected devices? Let's take another example. Mike has to go for a morning meeting. His alarm clock wakes him up at 7 a.m. and notifies the coffee maker to start brewing coffee. When he goes to take a shower, the geyser was already notified and warm water was available for Mike, saving his time. Mike's car is connected to his calendar and tells him to take the best route to avoid traffic. If the traffic is heavy, his car might send a text to another party notifying them that Mike will be late. The Internet of Things can be applied to transportation, production, smart cities, and many other projects, saving us energy, time, and reducing waste. We are yet to completely understand how Internet of Things will impact our lives. What would be the opportunities and challenges that will come with it? For now, the best thing that we can do is to educate ourselves about Internet of Things, because IoT storm is here to stay, and the new rule of the future is going to be anything that can be connected will be connected. Okay, so let's proceed with the presentation. ओके सो इस वीडियो में हमने बहुत सारी चीजें लिखी, जरा हम उसको थोड़ा सा ओवरव्यू ले लेते हैं कि हमने क्या क्या चीजें लिखी उसके अंदर। पहली चीज IoT क्या है, उसको हम वैसे तो बहुत अच्छे से पूरे सेशन में देखेंगे, बट थोड़ा सा इसको समझने की कोशिश करते हैं। IoT की जो कहानी है वो शुरू होती है इंटरनेट से। इंटरनेट हम जानते हैं हमारी लाइफ में इंटरनेट ने कितना चेंज लाया, हमारी लाइफ कितना बदल चुकी है इंटरनेट की वजह से। हर चीज आज हम ये जो लेक्चर अटेंड कर पा रहे हैं इंटरनेट की वजह से है। आप नेट पे सर्च करते हैं, आपके असाइनमेंट्स इंटरनेट से होते हैं, हम बातचीत, हम वेबसाइट्स इंटरनेट से देखते हैं, बहुत सारी चीजें आज इंटरनेट पे हो रही है। लेकिन अगर हम ध्यान से देखें तो अभी भी हम इंटरनेट से केवल दो ही तरीके से कनेक्टेड है। एक है हमारा बेसिकली या तो हम मोबाइल फोन जैसे डिवाइस से कनेक्टेड है या लैपटॉप से। तो अभी केवल दो ही मोड हैं जिससे ब्रॉडली एज ए ह्यूमन हम इंटरनेट से कनेक्टेड है। इमेजिन कीजिए एक दुनिया जहां पे हर एक डिवाइस इंटरनेट से कनेक्ट हो जाए, तो इंटरनेट से कनेक्ट होने से क्या एडवांटेजेस हैं? अभी हम आपस में बातचीत कर पा रहे हैं, हम अपने डेटा एक्सचेंज कर पा रहे हैं इंटरनेट की मदद से। इमेजिन कीजिए वो दुनिया जहां पे मशीनें आपस में बातचीत करें, मशीनें जो है वो चीजें अपने आप करती रहें, हमारे बैकग्राउंड में हमको मदद करें। ऐसी दुनिया में अगर हम चले जाएंगे तो हमारी दुनिया जो है वो पूरी तरह से बदल जाएगी। ऐसे दुनिया में हम आ जाएंगे जिसको इमेजिन आज भी करना बड़ा मुश्किल है। आज से 15-20 साल पहले आप इमेजिन करिए जब मोबाइल फोन नहीं थे और या नए नए मोबाइल फोन आए थे, तो 15 रुपए और 30 रुपए पर मिनट का चार्ज लगता था। उस समय पर सेकंड की यूनिट होती थी। इनकमिंग में भी आपको चार्ज देना पड़ता था। और आज एक सब्जी वाले पे के लिए से आप जब कुछ सब्जी ले जाते हैं तो पहले से आप व्हाट्सएप पे मैसेज भेज देते हो, सब्जी वाला आपकी सब्जी निकाल के रखता है। तो इस लेवल पे आज हम पहुंच चुके हैं बिकॉज ऑफ इंटरनेट। तो IoT में अगर मशीनें भी इस तरीके से बातचीत करने लगे
मशीनें भी हर चीज अपनी मैनेज करने लगे, तो दुनिया बहुत बदल जाएगी। इसी वजह से इस वीडियो में बहुत सारे एग्जांपल्स शेयर किए, जैसे कि अगर आप उठते हैं तो आपकी कॉफी अपने आप बन जाए, अगर आप ट्रैफिक में फंस जाते हैं तो ऑटोमेटिकली मैसेज सभी लोग तक पहुंच जाए कि आप ट्रैफिक में फंसे, शायद आप लेट हो जाएंगे। मतलब आपका ट्रैफिक सिग्नल भी आपसे बातचीत कर रहा है, हर कोई आपसे बातचीत कर रहा है, यही है आईओटी की दुनिया। तो इस आईओटी की दुनिया को हम और अच्छे से समझेंगे, और न सिर्फ हमें इसको समझना है बल्कि हम इस लेवल पे भी जाएंगे कि हमें अगर आईओटी प्रोडक्ट्स बनाने हैं, क्योंकि इस दुनिया को बनाने के लिए इंजीनियर्स की जरूरत पड़ेगी, सपोर्ट सिस्टम की जरूरत पड़ेगी, और उसमें हमें ही सब लोग को मदद करनी है। तो हम आगे देखेंगे कि अगर हमें इस टाइप के प्रोडक्ट्स बनाने हैं तो हमें क्या क्या चीजें समझनी होगी और उसके साथ बढ़ना होगा। तो ये वीडियो सिंपली ये कह रहा है कि हर एक चीज जिसको कनेक्ट किया जा सकता है हम उसको कनेक्ट करेंगे, और यही आईओटी की बात कर रहे हैं। यहाँ पे जो भी इंटेलिजेंट डिवाइस आप देख रहे हैं, चाहे वो फैन हो या कोई भी चीज हो, ठीक है, फैन हो आपका, या फ्रिज हो, या वॉशिंग मशीन हो, इवन आपकी लाइटिंग सिस्टम हो, ये सारी चीजों को जब हम इंटरनेट से कनेक्ट कर देंगे, जो चीज आप कनेक्ट कर सकते हैं, इवन यहाँ तक आपकी घड़ी भी शायद कनेक्टेड हो जाएगी। ऐसी दुनिया को हम आईओटी की दुनिया कहते हैं। इसके बारे में और हम आगे समझते जाते हैं किस तरीके से ये दुनिया बनाई जा रही है, डेवलप हो रही है, दुनिया में इस पर कितना ज्यादा काम हो रहा है। तो इंटरनेट ऑफ थिंग्स है क्या? अभी हमने देखा कि इंटरनेट ऑफ थिंग्स हमारे लाइफ में क्या क्या चेंजेस ला रहा है। अब एक शॉर्ट वीडियो है, हम टोटल 3 ही वीडियोस कवर करेंगे। वीडियो से थोड़ा सा सेशन इंटरेस्टिंग हो जाता है, इसलिए मैं वीडियो शेयर कर रहा हूँ। तो इस वीडियो को हम देखते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि एक्चुअल इंटरनेट ऑफ थिंग्स है क्या। अगेन मैं चैट बॉक्स में जो है इसका लिंक शेयर कर रहा हूँ ताकि आप भी इसको देख सकें। तो आप लोग मेरी स्क्रीन देख पा रहे हैं? चलिए इस वीडियो को देखते हैं। By now, you may have heard the term Internet of Things. Sounds interesting, but what does the Internet of Things actually mean? IoT is an evolution of mobile, home, and embedded applications that are being connected to the Internet, integrating greater compute capabilities and using data analytics to extract meaningful information. Billions of devices will be connected to the Internet, and soon, hundreds of billions of devices. As related devices connect with each other, they can become an intelligent system of systems. And when these intelligent devices and systems of systems share data over the cloud and analyze it, they can transform our businesses, our lives, and our world in countless ways. Whether it's improving medical outcomes, creating better products faster with lower development costs, making shopping more enjoyable, or optimizing energy generation and consumption. Here's an example of the big picture. Imagine an intelligent device such as a smart traffic camera. The camera can monitor the road for congestion, accidents, and weather conditions, and communicate that status to a gateway that combines it with data from other cameras, creating an intelligent citywide traffic system. Now, imagine that intelligent traffic system connected to other citywide transportation systems, which get data from their own intelligent devices, creating an ever larger intelligent system of systems. The really big possibilities come from analyzing the end-to-end data across that system of systems. For example, let's say the city's intelligent traffic system detects massive congestion due to an accident. That insight can be sent to the citywide transportation system, which can analyze the accident's impact on other city systems. Recognizing the accident is near the airport and 2 city schools, it could notify those systems so they can adjust flight and school schedules. It can also analyze and derive optimal routes around the accident and send those instructions to the city's digital signage system to guide drivers around the accident. And that's just one example of the potential benefits that can happen when intelligent devices share insight with other systems, forming ever-expanding systems of systems. But how do we get there? Regardless of the solution, Intel processors are designed to help you get to market faster
इस वीडियो में हमने क्या देखा कि बेसिकली IoT, ये वीडियो ये कहना चाह रहा है कि IoT जो है इट्स अ इवोल्यूशन ऑफ मोबाइल होम और एम्बेडेड एप्लीकेशंस। मतलब मोबाइल फोन, आपका घर के सारे डिवाइसेस और जो भी आपके एम्बेडेड एप्लीकेशंस हैं उनको हम इंटरनेट से कनेक्ट करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे और उसमें जो भी डेटा हमें जनरेट हो रहा है उस डेटा से हम जब मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट करते हैं और उसके हिसाब से कोई एक्शन लेते हैं तो उस एक्शन के इस पूरे इकोसिस्टम को हम IoT कहते हैं। तो IoT कह रहा है कि इसमें बिलियंस ऑफ डिवाइसेस कनेक्ट होने होगा। इमेजिन कीजिए आपकी हर एक जो डिवाइस जो आपके आसपास दिख रहा है जब वो इंटरनेट से कनेक्ट होगा तो दुनिया आपकी कैसे हो जाएगी। वो दोनों एंड से एज ए यूजर इसमें बहुत सारे बेनिफिट हैं, जो इस IoT सर्विसेज का यूज करेंगे उनको भी बेनिफिट है और एज ए इंजीनियर तो ये बहुत बड़ी टेक्नोलॉजी है। और IoT की सबसे खास बात है कि जिस देश की पॉपुलेशन जितनी ज्यादा होगी वहां पे IoT के बेनिफिट्स उतने ज्यादा होंगे। तो इंडिया बहुत ही जल्दी 10-15 सालों में IoT का एक बहुत बड़ा बेनिफिशियरी होने वाला है और इसमें बहुत ज्यादा डिमांड और जॉब्स भी क्रिएट होंगे। सो IoT बेसिकली एक इंटेलिजेंट सिस्टम्स ऑफ सिस्टम्स है। इस सिस्टम्स ऑफ सिस्टम्स क्या होता है, तो हम इसको एक थोड़े से एग्जांपल की मदद से समझने की कोशिश करते हैं। जैसे कि आपका ट्रूबा एक कॉलेज है जिसमें बहुत सारे डिपार्टमेंट्स हैं और बहुत सारे स्टूडेंट्स उसमें पढ़ते हैं, तो ट्रूबा अपने आप में एक सिस्टम हो गया। जबकि RGPV एक यूनिवर्सिटी है और उस यूनिवर्सिटी में अलग अलग इंस्टीट्यूट्स हैं, तो RGPV और आपके सारे कॉलेजेस को अगर हम मिला के एक सिस्टम बनाने की कोशिश करें तो उसको सिस्टम्स ऑफ सिस्टम्स कहते हैं। तो IoT एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स सिस्टम है जिसमें हम हर एक छोटे छोटे डिवाइस को जोड़ते जाते हैं, बहुत ही बड़ा सिस्टम हमारा बन जाता है जिसमें हमारे पास इतना सारा डेटा अवेलेबल है जिस डेटा से हम बहुत सारी चीजें कर सकते हैं। इन छोटी छोटी चीजों से हमारा बिजनेस, लाइफ और दुनिया बदल सकती है। जैसे कि अगर आप जीमेल पे अपने अकाउंट, सभी लोगों का जीमेल पे अकाउंट होगा और जब भी आप जीमेल में लॉगिन करते हैं और अपने ईमेल्स, शायद आपको पता हो कि जीमेल जो है आपके ईमेल्स पढ़ता है और अमेजन पे जब भी आप सर्च करते हैं तो अमेजन पे जो आपके सर्चेस हैं वो जीमेल से कई बार होते हैं या आपके हिसाब से होते हैं, क्योंकि जीमेल जानता है कि आपको क्या पसंद है, आप क्या चीजें सबसे ज्यादा सर्च करते हैं, इस वजह से वो आपकी सारी उसी टाइप के जो है साइट्स आपको शो करता है। तो ये एक एग्जांपल है कि किस तरीके से जब हमारे पास बहुत सारा डेटा अवेलेबल होगा तो डेटा से हम जो है कैसे कर सकते हैं। इसमें एक बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन भी उठता है कि सर इसमें प्राइवेसी, यस प्राइवेसी इसमें बहुत बड़ा कंसर्न है। तो अभी तक एज ए यूजर हम प्राइवेसी को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं देते हैं, बट IoT आने के बाद प्राइवेसी के कुछ रेगुलेशंस भी आएंगे। साथ ही साथ इसमें एक बहुत ही अच्छे एग्जांपल और दिया था इस वीडियो में, वो है इंटेलिजेंट ट्रैफिक सिस्टम। तो अभी हम जानते हैं इंडिया में बहुत ज्यादा ट्रैफिक जैम होता है। आप किसी बड़े शहर में चले जाइए, छोटे शहर में चले जाइए, भोपाल में फिर भी ट्रैफिक जैम की समस्या कम है, लेकिन कभी कभी वो होती है। तो ट्रैफिक जो है वो तब होता है जब हमारी कैपेसिटी से ज्यादा जो है ऑब्वियसली रोड पे अगर कार्स या व्हीकल्स होंगे तो ट्रैफिक जैम होगा। बट क्या हम इसको इंटेलिजेंटली मैनेज कर सकते हैं? बिल्कुल हम इसको मैनेज कर सकते हैं, लेकिन ये तभी मैनेज होगा जब हमारे पास रियल टाइम इंफॉर्मेशन हो। क्योंकि ट्रैफिक कब बढ़ेगा कब घटेगा हमें एक हल्का फुल्का अंदाजा होता है कि शाम के समय ज्यादा ट्रैफिक होगा, आफ्टरनून में कम होगा, रात में बिल्कुल नहीं होगा, लेकिन कभी भी हम ये नहीं बता सकते कि अभी इस समय कितना ट्रैफिक होगा। तो उसके लिए हमें रियल टाइम इंफॉर्मेशन की जरूरत है। तो स्मार्ट ट्रैफिक लाइट सिस्टम क्या करेगा, पूरे सिटी में जो है अपने कैमरे से वो मॉनिटर करता रहेगा कि कहाँ पे कितनी ज्यादा क्राउड है, कहीं एक्सीडेंट हो गया है तो वहां से कहाँ कहाँ ट्रैफिक जैम हुआ है। और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसे जो एडवांस टेक्नोलॉजी है उसकी मदद से जो डेटा कलेक्ट हुआ कि यहाँ पे आज इतने दिन इतने बजे इतना ट्रैफिक जैम था, यहाँ पे एक्सीडेंट हो गया तो यहाँ जैम हो गया है, तो नेक्स्ट टाइम अगर सेम या उस जगह के अराउंड कहीं एक्सीडेंट होता है तो हमें पहले ही पता चल जाएगा कि किस एरिया में ट्रैफिक जैम होने वाला है और उस टाइप से हम एक्शन ले सकते थे। तो यहाँ पे वीडियो में दिखाया गया है कि जैसे ही ट्रैफिक जैम हो जाता था या एक्सीडेंट हो जाता था तो हमारा जो IoT सिस्टम है वो पहले ही सारे ट्रैफिक सिग्नल्स को इन्फॉर्म कर देता था कि वो एक डायरेक्शन में रोड्स को जाने के लिए अलाउ न करें और सारे जो कार्स और व्हीकल्स हैं वो ऐसे रोड से निकल जाए ताकि जो है ताकि ट्रैफिक जैम की सिचुएशन ना बने। तो इस टाइप के बहुत सारे एडवांस टेक्नोलॉजी जो है वो IoT से बनाई जा सकती है। तो हम जरा अगेन जैसे कि मैंने जो इंटरनेट की कहानी बताई थी इस कहानी को थोड़ा सा हम आगे बढ़ाते हैं। तो इंटरनेट क्या है? इंटरनेट एक बहुत सिंपल सा ग्लोबल सिस्टम ऑफ इंटरनेट इंटरकनेक्टेड कंप्यूटर्स को हम इंटरनेट कहते हैं।
जो एक स्पेसिफिक प्रोटोकॉल यूज करता है जिसको हम इंटरनेट प्रोटोकॉल कहते हैं, टू कम्युनिकेट बिटवीन नेटवर्क्स एंड डिवाइसेस। तो जितने भी डिवाइसेस और नेटवर्क्स हैं इसके बीच में कम्युनिकेशन करने के लिए इसने एक स्पेशल प्रोटोकॉल डेवलप किया हुआ है, उसको हम इंटरनेट कहते हैं। तो इंटरनेट जो है इसकी कहानी भी इंटरेस्टिंग है। ये आज जितना यूज किया जा रहा है उस पर्पस के लिए इंटरनेट को कभी नहीं बनाया गया। इंटरनेट को एक सिंपल चीज के लिए बनाया था, वो है ईमेल एक्सचेंज। इमेजिन करें वो दिन, उन दिनों की बात जब हमें अगर कोई मैसेज भेजना है, चिट्ठी भेजनी है, तो चिट्ठी पहुंचने में 1 हफ्ते से 15 दिन, कई बार महीनों लग जाते थे, तो इसका रिप्लाई आने में महीनों लग जाते थे, तो हम दुनिया से बहुत डिस्कनेक्टेड थे। इंटरनेट ने ईमेल्स को आसान बनाया, लेकिन सिर्फ ईमेल नहीं, इंटरनेट हर जगह यूज होने लगा। तो इसने हमारी दुनिया को अब पूरी तरीके से बदल दिया है। तो हम इंटरनेट को 2 मोड से यूज कर सकते हैं, मोबाइल फोन से और लैपटॉप से, जैसे मैंने कहा। तो इंटरनेट जो है अभी अगर हम बात करें तो इंटरनेट जो है, जो मेन काम जो करता है मेनली जो है, ये ह्यूमन टू ह्यूमन कनेक्शंस की बात करता है, मतलब इंसानों को इंसानों से जोड़ने की बात करता है इंटरनेट। तो IoT क्या है? IoT ने इस चीज को एक स्टेप फॉरवर्ड ले आया। ऐसा नहीं है कि ये सोच पहले नहीं थी, बट ये पहले इतनी टेक्नोलॉजी हमारे पास अवेलेबल नहीं थी कि हम ये सोच ला सकें। तो IoT क्या कहता है कि हमें ह्यूमन टू ह्यूमन कनेक्शन तो चाहिए ही चाहिए, हम ह्यूमन टू मशीन कनेक्शन भी चाहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हम किसी घर से निकले, हमारा एक ऑफिस है, आपका ऑफिस है, और ऑफिस में AC या इस टाइप के डिवाइसेस लगे हुए हैं। आप चाहते हैं, बहुत गर्मियां हैं, आप जब ऑफिस पहुंचते हैं तो AC को ठंडा करने के लिए कम से कम आधा घंटे का समय लगता है या 15 मिनट का समय लगता है, जो भी समय लगता है। तो आप चाहते हैं कि आप ऑफिस पहुंचने से पहले ही AC ऑटोमेटिकली चालू हो जाए और आपका जो ऑफिस है या रूम है वो पहले से ठंडा रहे। तो आप चाहते हैं कि आप अपने AC को पहले से इंस्ट्रक्शन दे दें कि वो मेरे आने के 15 मिनट पहले ही चालू हो जाए। तो इस पूरी कहानी को हम ह्यूमन टू मशीन कनेक्शन कहते हैं। उसी तरीके से मशीन टू मशीन कनेक्शन भी हो सकता है कि भाई अगर मान लीजिए आपके ऑफिस में किसी रॉन्ग रीजन की वजह से फायर लग जाए या कोई धुएं की सिचुएशन आ जाए, तो न सिर्फ ये जो मशीन है वो आपको इन्फॉर्म करे, बट एक और मशीन को इन्फॉर्म करें जो पहले ही स्प्रे को ऑन कर दें, आपके फायर ब्रिगेड को इन्फॉर्म कर दें। तो ये सारी जो चीजें हैं, बहुत सारा नुकसान होने से बच सकता है। ठीक है, तो इसको हम मशीन टू मशीन कनेक्शन कहते हैं। मुझे एक एग्जांपल याद आ रही है तो मैंने कुछ दिनों पहले पेपर में पढ़ा था, न्यूज़पेपर में पढ़ा था कि गुजरात में किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट में बहुत भयंकर आग लग गई, क्योंकि वहां पे प्रॉपर एग्जिट चीजें नहीं थी या सारी चीजें नहीं थी। तो वहीं पे अगर हम IoT बेस्ड सिस्टम वहां पे होता तो बहुत सारी जानें बचाई जाती थी, क्योंकि बहुत पहले ही इसको पकड़ लिया जाता, टाइमली फायर ब्रिगेड को इन्फॉर्मेशन पहुंच जाती और बहुत सारी चीजें इसमें हो जाती। तो अगर हम सिंपल टर्म में बात करें तो IoT कहता है कि अब डिवाइसेस, मशीनें, जो भी प्रोडक्ट्स आप अराउंड अपने आसपास देख रहे हैं वो आपस में बातचीत कर सकते हैं, और यही IoT का मेन बेसिक कॉन्सेप्ट है। और इससे आपकी बहुत सारी दुनिया खुल के सामने आ जाती है, उसको हम एक एक करके देखते जाते हैं। तो अगर हम फॉर्मल डेफिनेशन की बात करें IoT की, तो IoT की जो फॉर्मल डेफिनेशन है वो ये है, द इंटरनेट ऑफ थिंग्स द नेटवर्क ऑफ फिजिकल डिवाइसेस। ये फिजिकल डिवाइसेस का नेटवर्क है। व्हीकल्स, आपकी गाड़ियां भी IoT हो सकती हैं। होम अप्लायंसेस, घर में जितने भी अप्लायंसेस आप यूज कर रहे हैं उनको हम IoT मान सकते हैं या IoT से जोड़ सकते हैं। या कोई भी एम्बेडेड डिवाइस जिसमें ये सारी चीजें होना जरूरी है, उसमें इलेक्ट्रॉनिक्स होना जरूरी है, उसमें सॉफ्टवेयर होना जरूरी है, उसमें सेंसर्स होने चाहिए, उसमें एक्चुएटर्स। एक्चुएटर एक टर्म यूज किया जाता है, जो भी चीज जो मोशन में होती है या जिसमें कुछ काम होता है। फॉर एग्जाम्पल, आपकी मोटर, फैन, LEDs, इन सबको हम एक्चुएटर कहते हैं। और फाइनली एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, ये सारे जो डिवाइसेस हैं इसमें कनेक्टिविटी फीचर होना चाहिए, मतलब ये इंटरनेट से कनेक्ट हो पाए ताकि ये डेटा को एक्सचेंज कर पाए। तो ये सारी चीजें जिस भी डिवाइस में होगी उसको हम IoT डिवाइस कह सकते हैं। तो एग्जांपल के तौर पे मोबाइल फोन आपका एक IoT डिवाइस है, लैपटॉप आपका एक IoT डिवाइस है, फैन आपका IoT डिवाइस अभी नहीं है, बन सकता है, लाइट आपका IoT डिवाइस अभी नहीं है, बन सकता है, फ्रिज आपका IoT डिवाइस अभी नहीं है लेकिन बन सकता है, एंड सो ऑन। इस तरीके से अपन समझ सकते हैं जो भी डिवाइस इंटरनेट से कनेक्टेड है उसको हम IoT डिवाइस कह सकते हैं। मोबाइल फोन जो एक IoT डिवाइस का एक बहुत अच्छा एग्जांपल आपका ओला या उबर ऐप है। आप अपने मोबाइल फोन से ऐप पे बुक करते हैं, आपकी कार आपके लोकेशन पे आ जाती है, आप उसमें बैठते हैं, GPS की मदद से वो ट्रैक करता है आपने क्या रूट, कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, उस हिसाब से बिलिंग आपकी जनरेट होती है। पहले ये सारी पॉसिबल नहीं था जब मोबाइल नहीं था, लेकिन मोबाइल के आने के बाद ये पॉसिबल हुआ। तो ये एक इंटरनेट ऑफ थिंग्स का एक बहुत ही अच्छा एग्जांपल है। तो IoT क्या अलाउ करता है? इट सेंस एंड कंट्रोल रिमोटली। हम चीजों को, हम डिवाइसेस को सेंस कर सकते हैं। आप घर बैठे बैठे ऑफिस
में कौन सा डिवाइस काम कर रहा है नहीं क्या कर रहा है वो आप चेक कर सकते हैं, इनको कंट्रोल कर सकते हैं, ऑन ऑफ कर सकते हैं। दूसरी बात यह है IoT के लिए सेपरेट इंफ्रास्ट्रक्चर की जरूरत नहीं है, ये एग्जिस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर में ही काम कर सकता है। लाइक फॉर एग्जांपल आपका जो इंटरनेट है उसके लिए आपको वाईफाई कनेक्शन लेना पड़ेगा या फिर आपको 3G 4G कनेक्शन लेना पड़ेगा, लेकिन आपका इंटरनेट कहता है कि जो भी कनेक्शन अवेलेबल हो, चाहे वाईफाई हो, चाहे 3G 4G हो, चाहे इथरनेट हो, IoT चलना चाहिए। तो IoT नया इंफ्रास्ट्रक्चर की बात नहीं करता है, इस वजह से इसके डेवलपमेंट काफी आसान हो जाता है। हेल्पिंग मोर डायरेक्ट इंटीग्रेशन ऑफ फिजिकल वर्ल्ड इनटू कंप्यूटर बेस्ड सिस्टम। तो ये क्या कह रहा है, IoT कह रहा है कि अब हमारी पूरी दुनिया कंप्यूटर बेस्ड सिस्टम से कनेक्ट हो जाएगी, तो हमारा जो सिस्टम है वो कंप्यूटर बेस्ड हो जाएगा। इससे हमें क्या फायदा होगा, हमारी एफिशिएंसी बढ़ेगी, हमारी एक्यूरेसी बढ़ेगी, गलतियों के चांसेस कम होंगे और ओवरऑल हमें इकोनॉमिक बेनिफिट मिलेंगे, हमें फाइनेंशियल बेनिफिट मिलेंगे, जो हमारे जो चीजों को आसान बनाएगी। और इंसानी दखल जो हम कहते हैं वो कम से कम हो जाएगा, तो एरर के चांसेस कम हो जाते हैं, फेलियर के चांसेस जो है वो मिनिमाइज हो जाएंगे। तो IoT में इंटरनेट के बारे में तो हम सभी जानते हैं, लेकिन हम थिंग्स को जरा समझ लेते हैं। तो थिंग्स जो वर्ड है वो लीगल स्कॉलर्स कहते हैं कि ये इसका जो डिफाइन उन्होंने किया है वो है कि इट्स एन इनएक्सट्रिकेबल मिक्सचर ऑफ हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, डेटा एंड सर्विस। सो बेसिकली IoT जो है, अगर उसमें जो थिंग्स है उसकी अगर हम एक डेफिनेशन लेने की कोशिश करें तो वो डेफिनेशन है कि इनएक्सट्रिकेबल मिक्सचर ऑफ हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, डेटा एंड सर्विस, जिसका मतलब ये है कि ऐसा चीज जिसके अंदर हार्डवेयर, इलेक्ट्रॉनिक और या अदर हार्डवेयर हो सकते हैं, सॉफ्टवेयर भी उसके अंदर होना चाहिए, सॉफ्टवेयर होगा तो ऑब्वियसली इलेक्ट्रॉनिक हार्डवेयर के बिना सॉफ्टवेयर नहीं डाला जा सकता। डेटा, ये कोई डेटा कलेक्ट करे, ठीक है, लाइक फॉर एग्जांपल रूम का टेम्परेचर क्या है, लाइट क्या है, सोलर पैनल पे अगर लगा हुआ है तो सोलर पैनल कितने वोल्टेज पे काम कर रहे हैं, सो ऑन। और इससे आपको कोई सर्विस मिलनी चाहिए, इससे आपको कोई फायदा मिलना चाहिए, कोई बेनिफिट मिलना चाहिए। तो ये सारी चीजों का अगर मिक्सचर अगर अपन करके अगर किसी एक सिंगल डिवाइस में अवेलेबल है तो उसको हम थिंग्स कहते हैं। तो थिंग्स इन द IoT सेंस कैन रेफर टू वाइड वैरायटी ऑफ डिवाइसेस। तो ये बहुत अलग अलग डिवाइसेस हो सकते हैं, जैसे हार्ट मॉनिटरिंग इम्प्लांट्स, आपके हार्ट को मॉनिटर करने के लिए अगर आपने कोई डिवाइस लगाया हुआ है उसको भी हम IoT डिवाइस कह सकते हैं। इंडिया में बिल्कुल यूज नहीं होता, लेकिन USA में बहुत बड़े बड़े लैंड होते हैं। यूएसए जो एक बहुत बड़ा कंट्री, बहुत बड़ा देश है, उसके हिसाब से उसकी पॉपुलेशन सिर्फ 32 करोड़ है। वहाँ पे बहुत बड़े बड़े ग्रास लैंड्स होते हैं जहाँ पे जो एनिमल्स है वो अपना एनिमल्स को चरवाते हैं, वहाँ पे घूमते रहते हैं, बहुत बड़े एरिया में घूमते रहते हैं। तो हर समय उनके पीछे इंसान नहीं जा सकते, तो वो उनके गले में एक ट्रांसपोंडर्स लगा देते हैं जिससे उसको ट्रैक कर सकते हैं। इवन इंडिया में ट्रांसपोंडर आज बहुत ज्यादा यूज हो रहा है फॉरेस्ट में। हमारे आपको शायद पता हो कि इंडिया एक ऐसी कंट्री है, इकलौती ऐसी कंट्री है पूरी दुनिया में जहाँ पे टाइगर्स की पॉपुलेशन बढ़ रही है, बाकी सभी जगह टाइगर्स की पॉपुलेशन कम हो रही है। इसके लिए हमारे जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट है उनके काम बहुत अच्छे से वो काम करें, इसी वजह से ऐसा संभव हो पाया है। तो उसमें बायोचिप ट्रांसपोंडर एक बहुत इंपॉर्टेंट उसका रोल है। ये सभी टाइगर्स के गले में बंधे होते हैं ताकि उनको ट्रैक किया जा सके, वो कहाँ पे घूम रहे हैं, क्या कर रहे हैं, और उनकी हेल्थ को मॉनिटर किया जा सके। ऑटोमोबाइल्स विद बिल्ट इन सेंसर्स, तो हम एक वीडियो देखेंगे, एग्जांपल देखेंगे जिसमें जो है हम देखेंगे कि कार को हम कितना एडवांस बना सकते हैं अगर उसमें एडवांस सेंसर्स लगा दिए जाए। तो अभी इस टाइप की लेटेस्ट कार वेस्ट में अवेलेबल है, इंडिया में भी धीरे धीरे इस टाइप की कार आ रही हैं। आने वाले टाइम में हमारी कारें भी काफी एडवांस हो जाएंगी इन टाइप की टेक्नोलॉजीज की वजह से। इस तरीके से अलग अलग बहुत सारे डिवाइसेस के बारे में इसमें बताया गया। तो अगेन हम एक लास्ट हमारा एक वीडियो देख लेते हैं। ये एक छोटी सी केस स्टडी है, ये समझाने के लिए कि IoT जो है वो किस तरीके से हमारे एक एप्लीकेशन को चेंज कर सकता है। IoT ओवरऑल हमारी लाइफ को भी बदल देगा, साथ ही साथ छोटे छोटे प्रोजेक्ट लेवल पे भी IoT बहुत सारी चीजें चेंज कर सकता है। तो अगेन मैं आपका जो एक लिंक जो है वो चैट बॉक्स में शेयर कर देता हूँ, ताकि अगर आप इसको अलग से देखना चाहे तो आप देख सकते हैं।
The Internet of Things is changing much about the world we live in. From the way we drive to how we make purchases, and even how we get energy for our homes. Sophisticated sensors and chips are embedded in the physical things that surround us, each transmitting valuable data. Data that lets us better understand how these things work and work together. But how exactly do all these devices share such large quantities of data? And how do we put that information to work? Whether we're improving the production of a factory, giving city residents real-time updates on where to park, or monitoring our personal health, it's the common Internet of Things platform that brings this diverse information together and provides the common language for the devices and apps to communicate with each other. The process starts with the devices themselves, which securely communicate with an Internet of Things platform. This platform integrates the data from many devices and applies analytics to share the most valuable data with applications that address industry-specific needs. Let's start with a simple example, a car. After taking a long road trip, Rebecca notices that her check engine light has come on. She knows that she needs to have her car looked at by a mechanic, but is not sure whether it's something minor or something that needs immediate attention. As it turns out, the sensor that triggered Rebecca's check engine light monitors the pressure in her brake line. This sensor is one of many monitoring processes throughout the car, which are constantly communicating with each other. A component in the car called the diagnostic bus gathers the data from all these sensors, then passes it to a gateway in the car. The gateway integrates and sorts the data from the sensors. This way, only the most relevant diagnostic information will be transmitted to the manufacturer's platform. But before sending this organized data, the car's gateway and platform must first register with each other and confirm a secure communication. The platform is constantly gathering and storing thousands of bits of information from Rebecca's car and hundreds of thousands of cars like hers, building an historical record in a secure database. The manufacturer has added rules and logic to the platform. So when Rebecca's car sends a signal that her brake fluid has dropped below a recommended level, the platform triggers an alert in her car. The manufacturer also uses the platform to create and manage applications that solve specific issues. In this case, the manufacturer can deploy an application on the platform called the Asset Management System. This application oversees all of their customers' cars on the road, as well as all the parts in their warehouses. It uses the data from Rebecca's car to offer her a potential appointment time to service her car, directions to the nearest certified dealer, and a coupon for the service. What's more, the app will ensure that Rebecca's brakes are covered under her warranty, that the correct replacement part is ordered, and then sent to the dealership so it is ready when she arrives. But the manufacturer's analysis does not stop there. They have also deployed a continuous engineering application that tracks not only Rebecca's car, but hundreds of thousands of others, looking for ways to improve the design and manufacturing process of the car itself. If the same problem in her brake line crops up in a critical number of other cars, the manufacturer uses applications custom built for the automobile industry to pinpoint the exact problem. They can see if these cars were made at the same factory, used the same parts, or came off the assembly line on the same day. So what do all these pieces add up to? Streamlined inventory management for the dealer, a better, safer car from the manufacturer. And for Rebecca, it means she can be back on the road faster and get to where she's going safely. All thanks to the Internet of Things. मैं इस वीडियो को एक बार फिर से शेयर करना चाहूंगा सो दैट हम इसको अच्छे से समझे, क्योंकि बहुत ही अच्छा एग्जांपल है जो हमें एक समझाता है कि IoT एग्जैक्टली कैसे अप्लाई किया जाता है और इससे हमें कैसे बेनिफिट्स बहुत ज्यादा होते हैं। इसको एक बार फिर से देखते हैं, फिर हम आगे बढ़ते हैं। The Internet of Things is changing much about the world we live in. From the way we drive to how we make purchases, and even how we get energy for our homes. Sophisticated sensors and chips are embedded in the physical things that surround us, each transmitting valuable data. Data that lets us better understand how these things work and work together. But how exactly do all these devices share such large quantities of data? And how do we put that information to work? Whether we're improving the production of a factory, giving city residents real-time updates on where to park, or monitoring our personal health, it's the common Internet of Things platform that brings this diverse information together and provides the common language for the devices and apps to communicate with each other. The process starts with the devices themselves, which securely communicate with an Internet of Things platform.
This platform integrates the data from many devices and applies analytics to share the most valuable data with applications that address industry-specific needs. Let's start with a simple example, a car. After taking a long road trip, Rebecca notices that her check engine light has come on. She knows that she needs to have her car looked at by a mechanic, but is not sure whether it's something minor or something that needs immediate attention. As it turns out, the sensor that triggered Rebecca's check engine light monitors the pressure in her brake line. This sensor is one of many monitoring processes throughout the car, which are constantly communicating with each other. A component in the car called the diagnostic bus gathers the data from all these sensors, then passes it to a gateway in the car. The gateway integrates and sorts the data from the sensors. This way, only the most relevant diagnostic information will be transmitted to the manufacturer's platform. But before sending this organized data, the car's gateway and platform must first register with each other and confirm a secure communication. The platform is constantly gathering and storing thousands of bits of information from Rebecca's car and hundreds of thousands of cars like hers, building an historical record in a secure database. The manufacturer has added rules and logic to the platform. So when Rebecca's car sends a signal that her brake fluid has dropped below a recommended level, the platform triggers an alert in her car. The manufacturer also uses the platform to create and manage applications that solve specific issues. In this case, the manufacturer can deploy an application on the platform called the Asset Management System. This application oversees all of their customers' cars on the road, as well as all the parts in their warehouses. It uses the data from Rebecca's car to offer her a potential appointment time to service her car, directions to the nearest certified dealer, and a coupon for the service. What's more, the app will ensure that Rebecca's brakes are covered under her warranty, that the correct replacement part is ordered and then sent to the dealership so it is ready when she arrives. But the manufacturer's analysis does not stop there. They have also deployed a continuous engineering application that tracks not only Rebecca's car, but hundreds of thousands of others, looking for ways to improve the design and manufacturing process of the car itself. If the same problem in her brake line crops up in a critical number of other cars, the manufacturer uses applications custom built for the automobile industry to pinpoint the exact problem. They can see if these cars were made at the same factory, used the same parts, or came off the assembly line on the same day. So what do all these pieces add up to? Streamlined inventory management for the dealer, a better, safer car from the manufacturer. And for Rebecca, it means she can be back on the road faster and get to where she's going safely. All thanks to the Internet of Things. ओके सो हमने जो एक वीडियो देखा उसको थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। बेसिकली वो वीडियो ये बताना चाह रहा है कि हमारे पास एक इंटरेस्टिंग एप्लीकेशन है और उस इंटरेस्टिंग एप्लीकेशन को हम आईओटी से कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो अभी आप सभी लोग के पास कोई ना कोई व्हीकल घर में होता ही है, कार हो सकती है, बाइक हो सकता है। कार में कोई प्रॉब्लम आती है तो हम मैकेनिक के पास जाते हैं, मैकेनिक सारी चीजें चेक करता है, उसको ठीक करता है, या हम सर्विस सेंटर जाते हैं, यहाँ पे वो चेक करता है, फिर वो बोलता है इसमें ये प्रॉब्लम है या ये पार्ट में कोई दिक्कत है, फिर वो बोलता है कि ये पार्ट जो है अभी अवेलेबल नहीं है और ये कुछ दिनों बाद आएगा तो आपको फिर से जाना होता है, प्लस कई बार आपको वेटिंग भी रहता है। तो इस टाइप का हम सभी लोग जानते हैं कि हमारे व्हीकल से जो सर्विसिंग सिस्टम है वो कैसा हमें डील करना होता है इन सबके साथ। वहीं पे अगर हम आईओटी इनेबल्ड कार बनाएं जिसमें हमारी कार में बहुत सारे सेंसर्स लगे होंगे, अलग अलग सेंसर्स जो सारे हमारे कार के जो डिवाइसेस है उसको मॉनिटर करते रहेंगे। वो सेंसर्स हमें अपने आप बता देंगे कि कार में कुछ प्रॉब्लम है और वो हमें इंडिकेट करेंगे। साथ ही साथ सिर्फ वो हमें नहीं बताएंगे, वो सर्विस सेंटर वालों को भी इन्फॉर्म कर देंगे कि आपकी जो कार है उसमें कुछ प्रॉब्लम है और उसको शायद इस पार्ट्स की जरूरत पड़ेगी। सर्विस सेंटर वाले चेक करेंगे कि वो पार्ट्स अवेलेबल है या नहीं है, अदरवाइज वो उसको ऑर्डर कर देंगे और आपको एक डेट दे देंगे। उस डेट पे आप उस सर्विस सेंटर पे पहुंच जाएंगे और वो सारी प्रॉब्लम जो है वो आपको क्विकली और मिनिमम टाइम में जो है सॉल्व हो जाएगी। यहीं पे आईओटी यहीं पे स्टॉप नहीं होता, बेसिकली ये और आगे बढ़ता है जहां पे ये सारी जो इन्फॉर्मेशन है रियल टाइम इन्फॉर्मेशन, राइट,
कि कार का कैसे यूज हो रहा है, कैसे बाइक्स का यूज हो रहा है, उसमें क्या क्या प्रॉब्लम आ रही है, वो मैन्युफैक्चरिंग कंपनी तक पहुंचेगी जिसपे वो एनालिसिस कर सकते हैं। अगर एक ही शहर में या एक ही दिन सेल हुई या एक ही सीरियल नंबर की गाड़ियों में सेम प्रॉब्लम आ रहा है, मतलब हो सकता है उनके जो वेंडर्स होते हैं जो जिनसे वो सामान परचेज करके अपनी कार में लगाते हैं उनमें प्रॉब्लम होगा। साथ साथ इस रियल टाइम डेटा की मदद से वो कार के डिजाइन में इंप्रूवमेंट्स कर सकते हैं, बहुत सारी चीजें कर सकते हैं। तो क्या इस तरह की कार जब आएगी या इस टाइप के डिवाइस आएंगे तो हमारी चीजें काफी इंप्रूव हो जाएगी, एडवांस हो जाएगी। इस टाइप की कारें अभी भी वेस्ट में यूज हो रही हैं, काफी लोगों ने इस टाइप की कारों को लॉन्च कर दिया है। इंडिया में ये कार नहीं है क्योंकि ये महंगी पड़ती है। तो इस टाइप की टेक्नोलॉजी अगर कॉस्टली होगी तो हम इंडियंस इसमें कैसे बेनिफिट कर सकते हैं? बेसिकली कॉस्टली इसलिए है क्योंकि सारी टेक्नोलॉजी विदेशी या फॉरेन कंपनीज इसको बनाते हैं और ऑब्वियसली उनका कॉस्ट हाई होता है। तो ये एज ए इंजीनियर हम लोग का काम है, इंडियन इंजीनियर्स, की हम इंडिया स्पेसिफिक आईओटी टेक्नोलॉजीज डेवलप करें और उसकी कॉस्ट को मिनिमाइज करने की कोशिश करें ताकि हम इसका बेनिफिट्स ले सकें। तो ये वीडियो से हमें काफी अच्छी लर्निंग मिलती है कि किस तरीके से आईओटी जो है एक प्रॉब्लम को सॉल्व करके काफी सारी बेनिफिट्स दे सकता है। तो एक छोटा सा ब्रीफली हम आईओटी की हिस्ट्री देख लेते हैं। तो आईओटी की जो कहानी है वो वैसे तो ऑफिशियली जो है वो प्रॉक्टर एंड गैम्बल से स्टार्ट होती है, बट उसके प्रीवियस भी काफी सारे एग्जांपल्स थे। जैसे 1980 में कोको कोला ने एक मशीन डेवलप की थी जो कि रिमोट कोको कोला जो डिस्पेंसिंग मशीन, शायद आपने एटलीस्ट वीडियोस वगैरह पे देखी होगी। तो ये मशीन जो है वो एक यूनिवर्सिटी में लगी थी और रिमोटली कोको कोला देख पा रहा था कि उस मशीन के अंदर, डिस्पेंसर के अंदर कितनी कोको कोला की बॉटल्स हैं, वो ठंडी प्रॉपरली है या नहीं, या जब वो खत्म हो जाती थी बॉटल्स तो ऑटोमेटिक इन्फॉर्मेशन आता है। तो ये एक आईओटी का एग्जांपल था। हाउएवर जो फॉर्मल डेफिनेशन या फॉर्मल नाम जो है इंटरनेट ऑफ थिंग्स, वो केविन एस्टन ने प्रॉक्टर एंड गैम्बल में रहते हुए इसको दिया और उन्होंने ही आईओटी टेक्नोलॉजी का पहला प्रोटोटाइप बनाया और आगे चल के ये हर एक फील्ड में फैल गया। तो इसकी कहानी ऐसी है कि केविन एस्टन जो है उन्होंने कहा कि आरएफआईडी जो है, जो हम आज काफी जगह यूज करते हैं, आरएफआईडी अगर आपने नहीं देखा होगा तो जब भी आप मॉल जाते हैं या पेंटुलून शोरूम आपने विजिट किया होगा तो पेंटुलून शोरूम की जो गेट है उसमें बड़े बड़े ऐसे गेट्स जैसे लगे होते हैं एंट्रेंस पर, तो जिससे आप पास होते हैं। तो वो गेट्स नहीं होते, बेसिकली जो है वो आरएफआईडी रीडर्स होते हैं। और जब आप कोई कपड़ा परचेज करते हैं तो उसमें एक छोटा सा टैग लगा होता है जो काउंटर पे जाके वो निकालते हैं। वो टैग बेसिकली आरएफआईडी टैग होता है। तो अगर आप बिना बिलिंग करें अपने कपड़ों को गेट से बाहर ले जाने की कोशिश करेंगे तो आरएफआईडी रीडर जो गेट्स हैं वो अलार्म बजा देंगे। तो यही आरएफआईडी टेक्नोलॉजी है। तो उन्होंने बोला कि हम सारे डिवाइसेस को इस आरएफआईडी टेक्नोलॉजी से टैग कर सकते हैं और इस तरीके से हम आईओटी का यूज कर सकते हैं। तो आज लेकिन आरएफआईडी के अलावा बहुत सारी टैगिंग टेक्नोलॉजी आ चुकी है, जैसे बारकोड, क्यूआर कोड सबसे अच्छा एग्जांपल है। डिजिटल वाटरमार्क भी होता है। इवन आज ह्यूमंस भी, हम एज ए ह्यूमन भी हम टैग हो चुके हैं थ्रू आधार कार्ड, फिंगरप्रिंट्स और आई स्कैनर से हमें एक यूनिक नंबर प्रोवाइड किया जा चुका है। तो बेसिकली इसको डेवलप किया गया था इन्वेंटरी कंट्रोल के लिए, लेकिन आने वाले टाइम में ये लगभग सारे फील्ड्स में बहुत तेजी से फैल गया। तो ये था एक बेसिक इंट्रोडक्शन। थोड़ा सा इंट्रोडक्शन मोनोटोनस और थ्योरेटिकल होता है, लेकिन अब हम आगे प्रैक्टिकल की तरफ बढ़ते हैं ताकि सारी चीजें हम समझने की कोशिश कर सकें। तो आईओटी के इम्प्लीमेंटेशन से रिलेटेड जब हम बात करते हैं तो उसमें कुछ इश्यूज अभी भी हैं। आईओटी एक लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है, ये 5 से 10-15 साल पहले ही शुरू हुई थी और ये अभी भी मैच्योर नहीं हुई है। बहुत सारे प्लेयर्स इसमें काम कर रहे हैं। मैच्योर होने का मतलब है बहुत सारे स्टैंडर्ड प्रोडक्ट्स अभी भी इसमें नहीं आते हैं, रैंडमली लोग अलग अलग डोमेन में काम कर रहे हैं। तो इसके साथ कुछ जो इश्यूज हैं वो ये है कि मॉड्यूलैरिटी मीन्स अभी भी ये मॉड्यूल्स अलग अलग प्लग एंड प्ले नहीं है। जैसे अगर आप लैपटॉप खरीदते हैं तो आप अलग अलग कंपनीज के हार्ड डिस्क ले सकते हैं, अलग अलग कंपनी का प्रोसेसर ले सकते हैं, स्क्रीन अलग ले सकते हैं, माउस अलग ले सकते हैं, लेकिन आईओटी में अभी भी ऐसा नहीं है। तो जैसे अगर आप अपनी कार को एक आईओटी कार बनाना चाहते हैं तो वो सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग कंपनी जिससे आप परचेज कर रहे हैं, जैसे मारुति से परचेज कर रहे हैं तो मारुति कर सकती है, आप नहीं कर सकते। ये इसलिए पॉसिबल है, इसलिए पॉसिबल नहीं है क्योंकि मॉड्यूलैरिटी अभी भी आईओटी में मिसिंग है। पोर्टेबिलिटी, एक हार्डवेयर अगर आपने एक डिवाइस में लगाया तो दूसरे डिवाइस में इसमें यूज होगा नहीं होगा, उसके साथ इश्यूज हैं। स्टैंडर्डाइजेशन, आईओटी में अभी कोई स्टैंडर्डाइजेशन नहीं है। तो इंटरनेट में जैसे आप जो भी कम्युनिकेशन करेंगे वो टीसीपी आईपी पर ही होगा। टीसीपी आईपी एक प्रोटोकॉल होता है, उसी पर होगा। आप अपने मर्जी से कोई प्रोटोकॉल नहीं बना सकते। तो इंटरनेट में स्टैंडर्डाइजेशन है लेकिन आईओटी में स्टैंडर्डाइजेशन नहीं है। तो ये सारी चीजों के बारे में हम डिटेल से वैसे आने वाले सेशंस में डिस्कस करेंगे। अभी जो एक टू स्टार्ट विद जो एक ब्रीफ
हम जो डिस्कस करते हैं वो है बेसिकली कि अगर आपको एक IoT डिवाइस, IoT प्रोडक्ट या IoT प्रोजेक्ट बनाना है तो आप उसको कैसे स्टार्ट करें, कैसे शुरू करें। तो अंग्रेजों ने बहुत अच्छी पॉलिसी बना के चले गए, दैट इज डिवाइड एंड रूल। तो उसको हम लेकिन यहाँ पे अच्छा पर्पस के लिए यूज करेंगे। तो अगर आपको एक IoT को इम्प्लीमेंट करना है, IoT प्रोडक्ट को इम्प्लीमेंट करना है, तो यहाँ पे हम एक आर्किटेक्चर जो मैंने खुद सेल्फ डेवलप किया है, आर्किटेक्चर आपको नेट पे या इंटरनेट पे कहीं नहीं मिलेगा। तो वो जो आर्किटेक्चर है वो आर्किटेक्चर जो है उसको अगर अपन फॉलो करें और स्टेप बाय स्टेप उन सारी चीजों को इम्प्लीमेंट करें तो हम IoT को बहुत अच्छे से इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो वो सारी लेयर्स एक बार मैं डिस्कस कर रहा हूँ और फिर मैंने एक जस्ट एक क्वेश्चन यहाँ पे साहिल शुक्ला पूछ रहे हैं, तो क्वेश्चन का मैं आंसर दूंगा। तो इसमें बेसिकली अगर आपको IoT प्रोडक्ट बनाना है तो आप देख रहे हैं कि आपकी जो कार है उसमें सेंसर्स लगे हैं, वो इन्फॉर्मेशन अपने आप सर्विस सेंटर वालों के पास पहुंच रही है, अपने आप कंपनीज के पास पहुंच रही है, अपने आप चीजें ऑर्डर हो रही है। तो ये सारी चीजें ऑब्वियसली इतनी आसान नहीं होंगी। तो IoT के बेनिफिट्स तो बहुत सारे हैं लेकिन इसका इम्प्लीमेंटेशन थोड़ा कॉम्प्लेक्स अभी भी है। तो इसको बेस्ट वे है इम्प्लीमेंट करने का, हम इसको अलग अलग पार्ट्स में तोड़े। तो उसको मैंने लेयर्ड फॉर्म में सारा इस स्लाइड पे शो कर रहा हूँ। तो सबसे जो बेसिक लेयर है, अगर आप एक IoT प्रोडक्ट की सबसे बेसिक लेयर की आप बात करें तो लेयर 1 है सेंसर्स एंड एक्चुएटर्स। जो लेयर 1 है वो बेसिकली इसमें हमारे पास बहुत सारे सेंसर्स और एक्चुएटर्स होते हैं। तो सेंसर्स और एक्चुएटर्स IoT का ऐसा पार्ट है जो एक्चुअली फिजिकल वर्ल्ड से कनेक्टेड है। ठीक है, IoT में जो आपके जो फिजिकल वर्ल्ड हुआ, आपकी कार की जो एग्जांपल थी उसमें जो फिजिकल वर्ल्ड हुआ वो सेंसर्स और एक्चुएटर्स थे। सेंसर्स जो है वो बता रहे थे कि कार में क्या क्या चीजें चल रही हैं, और एक्चुएटर से हम चाहे तो कार को कंट्रोल भी कर सकते हैं। फिर जो सेकंड लेयर है वो है प्रोसेसिंग हार्डवेयर। प्रोसेसिंग हार्डवेयर बेसिकली सेंसर से डेटा कलेक्ट करता है, उसके साथ कुछ प्रोसेसिंग करता है और फिर आगे अलग अलग लेयर पे भेज जाता है। तो प्रोसेसिंग लेयर में बेसिकली माइक्रो कंट्रोलर्स, प्रोसेसर्स, अलग अलग हार्डवेयर, वो कुछ भी यूज हो सकते हैं। इवन मोबाइल फोन भी प्रोसेसिंग लेयर के अंदर आता है। इसके बाद जो लेयर होती है वो है कनेक्टिविटी लेयर। तो कनेक्टिविटी लेयर बेसिकली इस बात की ये हमारे जो हार्डवेयर है इसको IoT डिवाइस बनाता है, क्योंकि मेरा जो एम्बेडेड डिवाइस है, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस तो बहुत टाइम से है, बट ये इंटरनेट से कैसे कनेक्ट हो पाएंगे वो कनेक्टिविटी लेयर ध्यान रखती है। तो आप वाईफाई से कनेक्ट हो सकते हैं, आप 3G से कनेक्ट हो सकते हैं, 4G से कनेक्ट हो सकते हैं, आप अपना एक पर्सनल वायरलेस नेटवर्क क्रिएट कर सकते हैं और वो पर्सनल वायरलेस नेटवर्क इंटरनेट से कनेक्ट हो सकता है। बहुत सारे ऑप्शंस हैं जिसके बारे में हम अच्छे से डिस्कस करेंगे। फिर जो लेयर आती है, ऑब्वियसली ये जो बेनिफिट है वो यूजर को है। यूजर उस डिवाइस के पास नहीं बैठा है, अलग अलग जगह बैठा है। कार वाले एग्जांपल में ड्राइवर जो कार का है या जो ओनर है कार का वो आपका यूजर है। इसी तरीके से जो ट्रैकिंग सिस्टम है, स्कूल की बसेस का जो ट्रैकिंग सिस्टम होता है वो भी एक IoT का अच्छा एग्जांपल है। उस ट्रैकिंग सिस्टम में जो बच्चे हैं वो उसके यूजर हैं IoT के, जो स्कूल है वो IoT का यूजर हुआ, आपका जो आपके जो पेरेंट्स हैं वो IoT के यूजर हुए। तो ये सारे जो यूजर होते हैं वो IoT से एक वेबसाइट, वेब पेज की मदद से जुड़े होते हैं। तो लेयर 4 जो है वो सर्वर, क्लाउड से वेबसाइट की बात करता है, किस तरीके से वेबसाइट पे हम डेटा भेजें। फाइनली ये सारा जो डेटा आया है, इस डेटा के साथ हम डेटा एनालिटिक्स लगा सकते हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसी चीजें लगा सकते हैं, बहुत सारी चीजें हम इसमें कर सकते हैं। तो वो सारी चीजों को हम लेयर 5 मानते हैं और लेयर 5 की मदद से हम उसको इम्प्लीमेंट करते हैं। तो अब ये था आपका ब्रीफ लेयर्ड आर्किटेक्चर ऑफ IoT। तो इसको हम आने वाले सेशंस में बहुत डिटेल से डिस्कस करेंगे। मैं अब साहिल सक्सेना का क्वेश्चन देख लेता हूँ। तो साहिल शुक्ला पूछ रहे हैं, सर हाउ मच एनर्जी दिस कॉन्स्टेंटली रनिंग सेंसर्स एंड ऑल हार्डवेयर विल रिक्वायर, बिकॉज कॉन्स्टेंटली चेकिंग ऑफ द पार्ट्स इन द कार विल रिक्वायर मोर एनर्जी, and Arduino, a router, all the sensor will require electricity to work. How will we overcome this problem if battery or energy providing devices will turn off if we are traveling very far? तो साहिल शुक्ला, इनफैक्ट इट्स अ वेरी वेरी गुड क्वेश्चन, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ये शो करता है कि आप हमारे सेशन को बहुत अच्छे से अटेंड कर रहे हो। सो बेसिकली पहले जो कंप्यूटर्स होते थे आपके, आज भी आप पहले के जो कंप्यूटर, डेस्कटॉप बड़े बड़े कंप्यूटर्स होते थे और आज से 10-15 साल पहले देखेंगे तो और भी बड़े होते थे, उसको बिजली भी वो काफी खाते थे। और आज के टाइम में आप देखते जाएंगे कंप्यूटर बहुत ज्यादा लो पावर होते जा रहे हैं। सो डेफिनेटली जब कंप्यूटर जो यूजर थे वो एक कंप्यूटर पर बैठ सकते हैं, लेकिन जैसे मोबाइल फोन आ गए तो मोबाइल फोन एक बहुत ही स्लीक सा डिवाइस है, ठीक है। और स्लीक से डिवाइस होने की वजह से आप इसमें देख सकते हैं आपका मोबाइल फोन में बहुत हैवी बैटरी लगी होती है, उसके बावजूद भी ये एक दिन में डिस्चार्ज हो जाता है। तो आप देख सकते हैं कि आज ऐसे ऐसे प्रोडक्ट्स बन रहे हैं जिसमें यूजर डिमांड करता है कि लोएस्ट एनर्जी के से आप लॉन्गेस्ट लाइफ इसको दे सकें।
सो चूंकि टेक्नोलॉजी आज इतनी एडवांस हो चुकी है कि ये जो सेंसर्स और हार्डवेयर जो कंटिन्यूअसली डेटा ले रहे हैं वो डेफिनेटली इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम कर रहे हैं। आपका सवाल बिल्कुल सही है, लेकिन ये काफी एडवांस हो गए और ये बहुत लो पावर पे काम करना शुरू कर रहे हैं। तो अगर हम कार के एग्जांपल लें तो कार में आपको पता होगा कि कार में ऑलरेडी एक बैटरी लगी होती है, उस बैटरी से कनेक्ट किए जा सकते हैं, जो बैटरी सेल्फ चार्ज होती रहती है। साथ ही साथ इलेक्ट्रॉनिक्स आजकल इतने लो पावर बन गए हैं कि ये बहुत कम पावर पे चलते हैं और कोडिंग की कुछ इंटेलिजेंट टेक्निक्स भी लगाई जाती हैं, जिसमें जो सेंसर है कंटिन्यूअसली डेटा रीड करने के बजाय हर मिनट या हर 15 सेकंड में डेटा रीड करेंगे, तो ये काफी कम पावर कंज्यूम करेंगे। तो एनर्जी मैनेजमेंट एक बहुत ही क्रिटिकल इश्यू बन चुका है आईओटी में। इसलिए नहीं कि एनर्जी की कोई किल्लत है, इसलिए कि भाई आपके जो डिवाइसेस है वो बहुत छोटे होते जा रहे हैं। तो डिवाइस छोटे होंगे, इनके एप्लीकेशंस ऐसे हैं, जैसे कि बात करें अभी टाइगर का जो मैंने एग्जांपल लिया, वो टाइगर का जो एग्जांपल है उसमें टाइगर के गले में आप एक टैग लगा रहे हैं। ऑब्वियसली टाइगर रोज रोज तो रिचार्ज करने आपके पास नहीं आएगा बैटरी को, तो ऑब्वियसली हमें ऐसा हार्डवेयर बनाना पड़ेगा जो एटलीस्ट कई महीनों चले कुछ सेल पे। तो ऐसे हार्डवेयर बनने शुरू हो गए हैं और इस पे बहुत एडवांस लेवल पे काम हो रहा है। तो उसके बारे में भी ड्यूरिंग द सेशन हम डिस्कस करते जाएंगे। आई होप साहिल मैं आपके क्वेश्चन को आंसर कर पाया। तो इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं। सो नेक्स्ट जो है अब हम थ्योरी हमने काफी डिस्कस कर ली, काफी सारे डिस्कशन कर लिए, बट थोड़ा बहुत डिस्कशन हमें करना जरूरी है क्योंकि आईओटी क्या है उसको हमें समझना जरूरी है। अब हम डायरेक्ट प्रैक्टिकल पे आते हैं। तो साथ साथ में आप पार्टिसिपेंट्स भी इन सब चीजों को साथ साथ में टिंकरकैड को इम्प्लीमेंट करते जाएंगे साथ साथ में। और आज पहला डे है तो हम थोड़ा सा इंट्रोडक्शन लेंगे, 2-3 एग्जांपल्स करेंगे और कल से इसको फुल वे में हम करना शुरू कर देंगे। अगेन सभी पार्टिसिपेंट से रिक्वेस्ट है कि आप लैपटॉप की कोशिश करें, लैपटॉप या डेस्कटॉप पे यूज करें, क्योंकि टिंकरकैड तभी आप अच्छे से यूज कर पाएंगे। और हम इसके सिमुलेशन स्टार्ट करेंगे। तो आज का जो सेशन रहेगा टिंकरकैड में हम इसको इंट्रोड्यूस करेंगे। टिंकरकैड प्लेटफॉर्म क्या है, तो ये ऑटोकैड कंपनी द्वारा एक फ्री प्लेटफॉर्म प्रोवाइड किया गया है जिसमें आप 3D डिजाइनिंग कर सकते हैं और इलेक्ट्रॉनिक्स के भी डिजाइन कर सकते हैं। तो इलेक्ट्रॉनिक्स रिलेटेड हम चीजें इसमें देखेंगे। तो टिंकरकैड इज बेसिकली इज अ फ्री ऑनलाइन 3D मॉडलिंग प्लेटफॉर्म दैट रन्स इन अ वेब ब्राउजर। ये वेब ब्राउजर में काम करता है, नोन फॉर इट्स सिंपलिसिटी एंड ईज ऑफ यूज। ठीक है, ये बहुत ही सिंपल है और बहुत इजीली आप यूज कर सकते हैं। बहुत सारे अदर सॉफ्टवेयर भी हैं सिमुलेशंस के, लेकिन वो इतने यूजर फ्रेंडली नहीं, इतने इंटरेक्टिव नहीं है। अभी आप जैसे टिंकरकैड पे काम करेंगे तो आपको समझ में आएगा कि बहुत ही इंटरेक्टिव है। इसमें ये बेसिकली 3-4 फीचर प्रोवाइड करता है, लेकिन 2 मेन इसमें चीजें हैं। तो 3D आप डिजाइन कर सकते हैं जो मैकेनिकल स्टूडेंट्स के लिए काफी अच्छा है, और आप सर्किट्स भी इसमें बना सकते हैं जिसपे हम एक्चुअली काम करेंगे। So we'll be using circuit platform of Tinkercad to simulate our IoT implementation. तो हमारे जो IoT के जितने भी implementations हमारे इस पूरे सेशन में चलेंगे वो हम Tinkercad पर ही implement करेंगे। तो सभी पार्टिसिपेंट्स मेरे साथ में अपने Google Chrome को ओपन कर सकते हैं। Google Chrome या जो भी आपका प्लेटफॉर्म है वेब ब्राउजर, उसको आप ओपन कर सकते हैं। उसको ओपन करने के लिए मैं आपको लगभग 2 मिनट का टाइम देता हूँ। इसमें आपको tinkercad.com वेबसाइट ओपन करनी है। So I'll just wait for 2 minutes. आई होप सभी लोगों ने tinkercad.com वेबसाइट को ओपन कर लिया होगा। तो जैसे ही आप tinkercad.com वेबसाइट ओपन करेंगे, आपको ये वाली जो विंडो है वो आपको दिखाई देगी। तो इस विंडो में जो है आपको ज्वाइन नाउ टैब पे क्लिक करना है, और ज्वाइन नाउ टैब पे क्लिक करके आपको आगे बढ़ना है। तो जैसे ही आप ज्वाइन नाउ के बाद आगे बढ़ेंगे, अगर आपको साथ साथ में कोई प्रॉब्लम भी आ रहा है तो आप चैट बॉक्स में टाइप कर सकते हैं। आपके क्वेश्चन की वजह से बाकी पार्टिसिपेंट्स को भी बेनिफिट होगा, इसलिए अगर आपको इस वेबसाइट पे जाने में या कोई भी प्रॉब्लम आता है तो आप मुझसे अपने चैट बॉक्स में टाइप करके मुझे बता सकते हैं। तो जैसे ही आप tinkercad.com पे ज्वाइन नाउ पे क्लिक करेंगे तो आप इस पेज पे आ जाएंगे।
इस पेज में आप देख रहे हैं देयर आर 2 ऑप्शन, इन स्कूल एंड ऑन योर ओन। तो इसमें बेसिकली आपको क्रिएट अ पर्सनल अकाउंट में जाना है। आप सभी लोगों को पर्सनल अकाउंट पे क्लिक करना है। मैं इस पूरे प्रोसेस को स्लोली करूंगा सो दैट यू कैन एवरीबॉडी कैन फॉलो। सो आई अगेन वेट फॉर 1 मिनट। So once you create, once you click on create a personal account, आपका ऐसा कुछ विंडो ओपन हो जाएगा। आपके पास 2-3 ऑप्शन है, साइन इन विद गूगल एंड साइन इन विद एप्पल। तो अगर आप अपने गूगल क्रोम में गूगल से लॉग्ड इन है तो आप ये वाला ऑप्शन भी यूज कर सकते हैं, बट अभी स्टैंडर्ड सभी लोग को फॉलो करने के लिए हम साइन अप विद ईमेल वाले ऑप्शन पे जाते हैं। तो सभी लोगों को साइन अप विद ईमेल ऑप्शन को क्लिक करना है। अगेन सभी सब पार्टिसिपेंट्स को बोल रहा हूँ कि नेक्स्ट क्लासेस से हम लाइव ड्यूरिंग अवर सेशन हम एक्सपेरिमेंट्स करेंगे ऑन दिस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म। तो सभी लोग जो है इस टिंकर कैट को अभी घर जाके भी थोड़ा बहुत देखना शुरू कर दीजिएगा। आज हम कुछ एक्सपेरिमेंट्स करेंगे उसके बाद, सो दैट सभी सेशन में आप सारे एक्सपेरिमेंट्स अच्छे से इंप्लीमेंट कर सके और काफी लर्न कर सके इस वेबिनार के थ्रू। हम आज के सेशन को थोड़ा 15 मिनट्स ओवरशूट करेंगे। 15 मिनट्स हम थोड़ा सा ज्यादा करेंगे बिकॉज स्टार्टिंग में इंट्रोडक्शन वगैरह भी काफी हुआ था, और फिर कल से विल बी कंप्लीटली टाइम टू टाइम। ओके, तो साइन अप विद ईमेल जब आप करेंगे तो आपकी ये वाली लिंक आपके सामने आ जाएगी। इसमें आपको एक अकाउंट क्रिएट करना है। ऑब्वियसली कंट्री आपको डालनी है, आपका डेट ऑफ बर्थ वगैरह डालना है, और फिर आपको नेक्स्ट पे क्लिक करना है। आई होप सभी पार्टिसिपेंट्स को फॉलो कर रहे हैं। तो जो लोग मेरे साथ साथ अगर आगे कंटिन्यू कर रहे हैं तो प्लीज चैट बॉक्स में मुझे बताएं कि आप साइट पे विजिट कर पा रहे हैं कि नहीं, अपना प्रोफाइल बना पा रहे हैं कि नहीं। ओके, सो व्हेंस यू सिलेक्ट योर कंट्री एंड डेट ऑफ बर्थ, फिर आपको नेक्स्ट पे क्लिक करना है। देन यू हैव टू we have to basically give our email ID. Thank you Mr. Vikumbara for informing कि आप कर पा रहे हैं। तो क्रिएट अकाउंट पे अपना ईमेल आईडी और आपको पासवर्ड डालना है, और पासवर्ड आपको अपने ईमेल आईडी का नहीं डालना है। आप इस अकाउंट का अपना नया पासवर्ड बना सकते हैं। उस पे पासवर्ड टाइप करके जो है आपको आई एग्री पे क्लिक करके कंटिन्यू करना है क्रिएट अकाउंट। ओके, सो वंस यू हैव क्रिएटेड योर अकाउंट, आपकी टिंकर कैट की इस तरीके की विंडो आपकी ओपन हो जाएगी। नेक्स्ट टाइम आपको जब भी लॉगिन करना है तो आपको ईमेल आईडी और पासवर्ड से आपको लॉगिन ये करने को बोलेगा। सो जस्ट लेट मी नो हाउ मेनी स्टूडेंट्स हैव रीच्ड दिस स्टेज। स्टेज तक कितने लोग पहुंच गए हैं। तो सभी लोग जो यहाँ इस स्टेज तक पहुंच गए वो चैट बॉक्स में डन सर करके टाइप कर सकते हैं, सो दैट आई कैन नो कि काफी सारे पार्टिसिपेंट्स इसको फॉलो कर रहे हैं। सो फार 4 पार्टिसिपेंट्स ने मुझे बताया है कि वो यहाँ तक पहुंच गए हैं। आई एम वेटिंग फॉर अदर्स। नाइन 10 11 पार्टिसिपेंट्स लगभग। आई एम सीइंग देयर आर 45 पार्टिसिपेंट्स एक्टिव। बाकी सब लोग भी फटाफट यहाँ तक पहुंच जाएं।
just wait for 2 more minutes. So around 13 पार्टिसिपेंट्स ने मुझे चैट बॉक्स में कंफर्म कर दिया है कि सर कि आप इस स्टेज तक पहुंच गए हैं. 14, 15, अभी बहुत सारे पार्टिसिपेंट्स यहाँ तक नहीं पहुंचे हैं. प्लीज कंटिन्यू, प्लीज फटाफट इस स्टेज तक आ जाए. Okay, so I'll continue from here. I think there are still many participants जो अभी इस ऑनलाइन सिमुलेशन तक नहीं पहुंचे हैं, तो मैं सभी को रिक्वेस्ट करूंगा कि नेक्स्ट सेशन में यहाँ तक पहुंचे, क्योंकि आप लोग उसमें बहुत सारी चीजें सीखने वाले हो. बहुत सारी चीजें हम लर्न करेंगे और सेशन के साथ साथ करेंगे. आपको ऐसा फील आएगा जैसे कि आप एक फिजिकल क्लासरूम में. सभी से रिक्वेस्ट है कि इस टिंकरकैड में आपका अकाउंट बना के फटाफट एटलीस्ट नेक्स्ट क्लास के लिए रेडी रहें. अगर आज आप नहीं कर पा रहे हैं तो, क्योंकि हो सकता है काफी सारे लोग मोबाइल फोन से हो, तो नेक्स्ट क्लास में लैपटॉप से आप लॉग इन करें फॉर दिस वेबिनार और टिंकरकैड पे अपन प्रैक्टिस करें. ओके, सो जैसे कि आप इस विंडो में देख रहे हैं, ये एक डैशबोर्ड है. ये डैशबोर्ड आपको यहाँ पे दिख रहा है. इस डैशबोर्ड में जो है आपका जो बाय डिफॉल्ट 3D डिजाइन सिलेक्टेड है, आपको सर्किट्स टैब को सिलेक्ट करना है. जो आपको जो सर्किट्स टैब है उसको आपको सिलेक्ट करना है. ये सर्किट्स टैब जो है इसको सिलेक्ट करना है. जब आप सर्किट टैब को क्लिक करेंगे तो मेरे इसमें कुछ एग्जांपल्स थे. बाय डिफॉल्ट एक एग्जांपल आता है, सारे एग्जांपल्स नहीं आएंगे. तो इस टाइप की कोई विंडो आपके इसमें आएंगे जिसमें सर्किट्स और क्रिएट न्यू, ये आपका टैब वहां पे दिखेगा आपको. तो सभी लोग सर्किट्स को क्लिक करें और क्रिएट न्यू पे जाएं. क्रिएट न्यू टैब तक यहाँ पे वेट करें और क्रिएट न्यू बटन को क्लिक करें. So everybody click the circuit tab and then click to the create new circuit tab. Okay, so once you click on the create new circuit tab, you will see यहाँ पे एक विंडो आपकी इस तरीके से ओपन हो रही होगी, जिसमें राइट हैंड साइड में आपको बहुत सारे कंपोनेंट्स दिख रहे हैं. लेफ्ट हैंड साइड जो है जिसमें एक स्पेस है, ये आपका जो स्पेस है, ये जो आपका स्पेस है, ये यहाँ पे हम अपने सर्किट्स बनाएंगे. यहाँ पे आपको डिफरेंट कंपोनेंट्स यहाँ पे अवेलेबल होंगे जिसको हम यहाँ पे अभी बनाने वाले हैं. तो ये हमारा वर्क एरिया है जहाँ पे हम काम करेंगे. हमारा जो भी एग्जांपल खुलता है उसमें बाय डिफॉल्ट एक नाम आ जाता है. इस नाम को आप चेंज भी कर सकते हैं, जो अपन नेक्स्ट क्लासेस में देखेंगे इस नाम को हम कैसे चेंज करें. इसमें सारे जो भी आप डिजाइन बनाएंगे वो ऑटो सेव हो जाते हैं, तो आपको अलग से सेव करने की जरूरत नहीं है. तो अभी जो है हम एक बहुत ही सिंपल सा एग्जाम्पल इम्प्लीमेंट करते हैं, जिसका सर्किट डायग्राम आप सामने देख रहे हैं, जिसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और जस्ट टू रिमेंबर कि क्या सर्किट बनाना है. जिसमें हम सिंपल एक बैटरी ले रहे हैं, एक पुश बटन ले रहे हैं और एक एलईडी ले रहे हैं, और एक 1K रेजिस्टेंस ले रहे हैं, और उसकी मदद से हम एलईडी को स्विच के बटन से ऑन ऑफ कर रहे हैं. तो ये जो एक बहुत सिंपल सा एक्सपेरिमेंट है, इसकी मदद से हम सिर्फ टिंकरकैड प्लेटफॉर्म को एक्सप्लोर कर रहे हैं और फिर नेक्स्ट सेशंस में हम बहुत अच्छे एक्सपेरिमेंट्स भी करेंगे. तो जो जितने भी सर्किट हम बना रहे हैं उसका आप स्क्रीनशॉट लेंगे तो अच्छा रहेगा, सो दैट फ्यूचर में आप इसको फॉलो कर सकें. तो हम ये वाला सर्किट इम्प्लीमेंट करेंगे. तो बेसिकली जो है अब हमें इसको इम्प्लीमेंट करना है अपने टिंकरकैड में. तो इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए जो है हमको जो है 4 कंपोनेंट्स लेने हैं. ये चारों कंपोनेंट जो है आपको राइट हैंड साइड में मिलेंगे. इसमें आपको एक बैटरी लेनी है, एक एलईडी लेना है, रेजिस्टेंस लेना है और एक पुश बटन लेना है. तो एलईडी, रेजिस्टेंस और पुश बटन आपको डायरेक्टली दिख जाएगा. थोड़ा सा आप नीचे स्क्रॉल करेंगे तो आपको बैटरी भी दिख जाएगी. तो ये चारों कंपोनेंट आप अपने विंडो में जो है चारों जो कंपोनेंट है आपके, वो आप अपने वर्क एरिया में
क्लिक एंड ड्रैग करके आपको लाना है। आपको क्लिक करना है, लाइक फॉर एग्जांपल आप यहाँ पे गए, फिर आपने इस पे क्लिक किया, क्लिक करके उसको क्लिक पकड़ा रखा और फिर यहाँ से ड्रैग किया। मैं अभी ये जो स्लाइड्स है आपको प्रेजेंटेशन पे दिखा रहा हूँ, दैट्स व्हाई आई एम नॉट एबल टू डू इट। नेक्स्ट सेशन से हम डायरेक्ट टिंकरकैड पे काम करेंगे, तो मैं आपको दिखाऊंगा भी किस तरीके से आप कंपोनेंट क्लिक एंड ड्रैग कर सकते हैं। अभी आपको 4 कंपोनेंट्स जो हैं वो ड्रैग करने हैं। बैटरी लेनी है, एलईडी लेना है, आपका रेजिस्टेंस लेना है और आपका एक पुश बटन स्विच लेना है। So once you have taken this component, अब हमें इसके कनेक्शंस करने हैं, ठीक है। सो कनेक्शंस के इंस्ट्रक्शन आप स्लाइड पे देख सकते हैं। तो इसके जो कनेक्शंस हैं उसमें जो आपकी बैटरी है उसमें जो रेड टर्मिनल है वो आपका पॉजिटिव है, जो आपका ब्लैक टर्मिनल है वो नेगेटिव है। अगेन आपको क्लिक करके आप इसको लेके जाएंगे तो आपके कनेक्शंस हो जाएंगे। आपको जो है 9 वोल्ट बैटरी का जो पॉजिटिव टर्मिनल है वो स्विच के 2A, इसके जो अलग अलग जो चारों टर्मिनल हैं वो टर्मिनल जो है 1A 1B 2A 2B, ऐसे 4 टर्मिनल्स हैं आपके, ठीक है। जो है 1A 1B और 2A 2B, तो आपको जो है पॉजिटिव जो है वो 2A से कनेक्ट करना है या 2B से भी आप कनेक्ट कर सकते हैं, जो आपको कंफर्टेबल हो। 2A और 2B दोनों से कनेक्ट कर सकते हैं। फिर आपको 1A और 1B का जो कनेक्शन है वो आपको एलईडी के पॉजिटिव या एनोड से कनेक्ट करना है, ठीक है। तो जब आप अपना माउस उस एलईडी के पास लेके जाएंगे, उस पिन के पास लेके जाएंगे, तो वहां पे आपको लिखा मिलेगा कि जो है एनोड जो है वो लिखा मिलेगा, तो उस टर्मिनल से आपको कनेक्ट करना है। तो तुम बड़ा पूछ रहे हैं सर, प्लीज एक्सप्लेन हाउ टू रीड द रेजिस्टेंस यूनिट, ऑल्सो हाउ मच वोल्ट इज रिक्वायर्ड टू ग्लो एन एलईडी। ओके, सो तुम बड़ा बेसिकली जो है आपका जो रेजिस्टेंस है उस पर जो आप क्लिक करोगे तो आपको उसकी वैल्यू दिख जाएगी। अभी जो यहाँ पे रेजिस्टेंस है वो 1 किलो ओम का है और एलईडी जो है वो 9 वोल्ट 12 वोल्ट तक आराम से 1 किलो ओम रेजिस्टेंस के साथ चल सकती है, ठीक है। सो आई होप आई आंसर्ड योर क्वेश्चन। तो रेजिस्टेंस आपको 1 किलो ओम का लेना है और बैटरी बाय डिफॉल्ट 9 वोल्ट आपको शो होगा, वो ही आपको लेनी है। आप वोल्टेज चेंज कर सकते हैं लेकिन वो अपन फ्यूचर सेशंस में देखेंगे। तो आपके स्विच का जो 1A या 1B कनेक्शन है वो आपको एलईडी के एनोड पे कनेक्ट करना है। एलईडी का जो कैथोड है वो आपको रेजिस्टेंस से कनेक्ट करना है और रेजिस्टेंस का जो दूसरा एंड है वो आपको नेगेटिव से कनेक्ट करना है। तो ये सारे कनेक्शंस आप कर लीजिए। मैं वेट करता हूँ, 2 मिनट का टाइम देता हूँ आपको ताकि आप इस कनेक्शन को कर सकें। और जिनके कनेक्शंस हो जाए वो प्लीज टाइप करें चैट बॉक्स में कनेक्शन डन। डन सर मत लीजिए, लिखिएगा कनेक्शन डन, कनेक्शन डन लिखिए सर, सो दैट आई नो कि आपने कनेक्शन कंप्लीट कर लिए। जिनके कनेक्शंस कंप्लीट हो गए हैं वो चैट बॉक्स में मुझे बता टाइप कर दीजिए कि कनेक्शन डन। सो 2 पार्टिसिपेंट्स के कनेक्शंस हो चुके हैं, आई एम वेटिंग फॉर अदर्स। प्लीज राइट कनेक्शन डन, सिर्फ डन मत लिखिए क्योंकि डन डन हर बार आता है तो कंफ्यूजन होता है। तो कनेक्शन डन से मुझे क्लियर हो जाएगा कि आपके कनेक्शन कंप्लीट हो गए। So far 4 participants have done the connections. 5 6 7 8 9
Rashi, resistance value should be 1 kilo. 9, 10, I think 10 participants कर चुके हैं कनेक्शन. रितु बोरा, इंटरनली जो आपका पुश बटन होता है उसमें 1A और 1B आपस में कनेक्टेड होते हैं, 2A और 2B आपस में कनेक्टेड होते हैं. तो जब हम बटन प्रेस करते हैं तो चारों कनेक्शन आपस में शॉर्ट हो जाते हैं. जब हम प्रेस नहीं करते तो 1A 1B जो है वो इंटरनली कनेक्टेड रहते हैं, 2A 2B इंटरनली कनेक्टेड. अगेन रिपीट करता हूं, जो आपके पुश बटन होते हैं उसमें 4 कनेक्शंस होते हैं, 1A 1B 2A 2B. 1A और 1B इंटरनली कनेक्टेड होते हैं, 2A और 2B इंटरनली कनेक्टेड होते हैं. जब हम स्विच को प्रेस करते हैं तो सारे कनेक्शन आपस में शॉर्ट हो जाते हैं. अभी भी आई थिंक हार्डली 10-12 लोगों ने कनेक्शंस किए हैं. बाकी लोग क्या कर रहे हैं? देयर आर अराउंड 45 पार्टिसिपेंट्स आई गेस. राशि, आप स्लाइड पे देखिए, स्लाइड पे जो इंस्ट्रक्शन लिखे हुए हैं जो आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं उसमें लिखा है कि आपको कौन से कनेक्शन कहाँ करने हैं. जैसे 9 वोल्ट बैटरी का जो पॉजिटिव है वो आपको टर्मिनल 2A से कनेक्ट करना है, 2B को आपको पुश बटन से कनेक्ट करना है, 1A को स्विच से एंड सो ऑन. अगर कनेक्शन के नाम आप तब देख पाएंगे जब आप अपने माउस को स्विच के पास लेके जाएं. ठीक है, मैं थोड़ी देर में आपको उस पर दिखाऊंगा. नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट जब हम करेंगे डायरेक्ट टिंकरकैड पे, तो आपको माउस जब उस पिन पे लेके जाएंगे तो वहां पे आपको नाम लिखा मिलेगा. तो आई थिंक 12 या 14 लोगों ने कर लिया है, अभी भी बाकी लोग नहीं कर रहे हैं. ओके, सो अब आगे बढ़ते हैं बिकॉज टाइम भी हमारा हो गया है. सो तो अब आप अगर आप इसको अब नेक्स्ट जो स्टेप है वो है कि इसके सिमुलेशन को हमें रन करना है. तो सिमुलेशन रन करने के लिए जो है आपके जो स्क्रीन है उसमें आपको प्रीवियस स्क्रीन जो है उसमें आपने देखा था यहाँ पे एक स्टार्ट सिमुलेशन टैब है, स्टार्ट सिमुलेशन टैब. ठीक है, तो जब आप स्टार्ट सिमुलेशन टैब को क्लिक करेंगे तो आपका जो है ये वाली विंडो में आप देख सकते हैं कि जब आप स्विच को प्रेस करोगे, ठीक है, यहाँ पे आपको एलईडी ग्लो हो रही है, लेकिन जब आप स्विच को प्रेस करोगे तो ही एलईडी ग्लो होगी. जब स्विच को प्रेस नहीं करोगे तो एलईडी ग्लो नहीं होगी. तो माउस से जब आप स्विच को क्लिक करोगे तो आपकी एलईडी ग्लो होगी, जब आप माउस से इसको क्लिक नहीं करोगे तो एलईडी आपकी ऑफ रहेगी. तो ये एक्सपेरिमेंट सभी लोग फटाफट कर लीजिए. जब जितने लोगों का ये सिमुलेशन डन हो जाएगा तो सभी लोग टाइप कर सकते हैं एक्सपेरिमेंट डन या सिमुलेशन डन, सो दैट आई नो कि आपने सिमुलेशन कंप्लीट कर लिया है. प्लीज राइट सिमुलेशन डन एंड या फिर एक्सपेरिमेंट डन इन योर चैट बॉक्स, सो दैट आई नो कि कितने पार्टिसिपेंट्स ने कर लिया. आई थिंक 5 पार्टिसिपेंट्स, 6. Seven. 8 now 9. Ritumbura, circuit doesn't need a programming, right? It's a simple circuit. ठीक है, तो हर सर्किट के लिए प्रोग्रामिंग की जरूरत नहीं होती. तो अभी हम आज और कल बिना प्रोग्रामिंग के सर्किट इंप्लीमेंट करेंगे, राइट? तो हर एक जो सर्किट है उसके लिए प्रोग्रामिंग की जरूरत नहीं होती है. ये आपका एक नॉर्मल सर्किट है जो सिंपल स्विच बटन से इंप्लीमेंट होता है. 6, 7, 8 पार्टिसिपेंट्स ने शायद कर लिया है. एक्चुअली मैं साथ साथ में आपकी चैट को देखता जा रहा हूँ बिकॉज फॉर प्रैक्टिकल सेशन अगर डाउट उसी समय क्लियर नहीं हुए तो आप अच्छे से काम नहीं कर पाते हैं.
That's why I will very quickly answer your question, and I also encourage all the participants जो अभी भी simulation नहीं कर रहे हैं वो फटाफट करें. ओके, राशि आपकी एलईडी ग्लो नहीं कर रही है तो आप प्लीज चेक कीजिए कि कनेक्शन सही है कि नहीं. नंबर 1. नंबर 2, आपने एनोड और कैथोड सही लगाया है कि नहीं. आप स्लाइड पे आप देखिए, बहुत क्लियरली मैंने मेंशन किया है कि एलईडी में 2 कनेक्शंस होते हैं, एनोड और कैथोड. अगर आपने एनोड को उल्टा कर दिया है, क्योंकि एलईडी इज अ डायरेक्शनल डिवाइस, तो एनोड को पॉजिटिव से कनेक्ट होना है और कैथोड को नेगेटिव से. अगर आपने कनेक्शंस में गड़बड़ की होगी तो आपकी एलईडी ग्लो नहीं करेगी. सो प्लीज चेक राशि कि आपने कनेक्शन सही किया कि नहीं. दूसरा, आपने एलईडी को उल्टा कनेक्ट तो नहीं कर दिया है. दैट्स व्हाई एलईडी इज नॉट ग्लोइंग. सो आई कैन सी लाइक 12-15 पीपल जो एक्टिव हैं, लगभग उन सभी का हो चुका है, राइट. So I'll take last experiment जो इसी को हम करेंगे, and then we'll finish today's session. ओके, सो अमित, एक्सपेरिमेंट्स आपको सेव करने की जरूरत नहीं होती, वो ऑटो सेव हो जाते हैं, राइट. सो हमने एक सिंपल सा एक एलईडी ग्लो कराया है. अब हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इसी एलईडी की जगह पे जो है हम एक बजर लगाएंगे और बजर को ऑन ऑफ करके देखेंगे और हमें एक साउंड भी यहाँ पे सुनाई देगा. तो जो नाम आपका है वो यहाँ पे आप ऐसे क्लिक कर सकते हैं, ठीक है. यहाँ पे आप जाके क्लिक कर सकते हैं और जो भी नाम आप देना चाहते हैं यहाँ पे दे सकते हैं. जैसे मैंने ट्रूबा LED 1 नाम दिया हुआ है अपने एक्सपेरिमेंट्स के लिए. तो अगेन आई विल ऑल्सो टेक अ पुश बटन, आई विल टेक अ बैटरी एंड आई विल टेक अ बजर. सो पीजो नाम से है ये. एक्चुअली इस टिंकरकैड में बजर नहीं है, लेकिन पीजो को हम एज अ बजर की तरह यूज कर सकते हैं. सो आई विल टेक अ पीजो, ठीक है. सो साथ साथ में आप फॉलो करें. तो जैसे कि मैं बता रहा था आपको कि आपको जो टर्मिनल है वो आपको यहाँ पे जैसे आप माउस पे क्लिक करेंगे, टर्मिनल 1A और टर्मिनल 2A और टर्मिनल 2B और टर्मिनल 1B जो है आपको यहाँ पे दिखता जाएगा. तो 1A और 1B जो है वो आपस में शॉर्ट होते हैं, 2A 2B आपस में शॉर्ट होते हैं. जब आप स्विच को प्रेस करेंगे तो चारों टर्मिनल आपस में शॉर्ट होते हैं. सिमिलरली बजर में आप देख सकते हैं यहाँ पे एक नेगेटिव टर्मिनल है, यहाँ पे एक पॉजिटिव है. तो हम जो पॉजिटिव सप्लाई जो है वो हम 2A या 2B से कनेक्ट करते हैं, किसी में एक में से हम कनेक्ट कर सकते हैं. फिर 1A या 1B में से जो है हम पॉजिटिव से कनेक्ट करेंगे लाइक दिस, और जो नेगेटिव टर्मिनल है वो हम नेगेटिव से कनेक्ट कर देंगे. तो जो पुराना आपने जो बनाया है आप उसमें भी चेंजेस कर सकते हैं या नया बना सकते हैं. नया बनाने के लिए आपको ये टिंकरकैड जो आपका होम पेज है उस पर क्लिक करना है. अगर आप नया बनाना चाहते हैं तो आपको टिंकरकैड का जो टैब है उस पर क्लिक करना है. तो आप बाहर आ जाएंगे और आप अगेन जो है क्रिएट न्यू पे क्लिक करेंगे तो नया ओपन हो जाएगा. और उसी को अगर आप वापस एडिट करना चाह रहे हैं तो आप उस पर क्लिक करेंगे. क्लिक करने के बाद एक विंडो ओपन होगी और यहाँ पे टिंकर दिस नाम से टैब पे आप क्लिक करेंगे तो आप उसी में चेंजेस कर सकते हैं. और नया अगर आपको क्लिक करना है तो नया बनाना है तो इसकी प्रोसेस मैंने अभी आपको बताई. ओके, सो अभी जैसे आपका ये ओपन हुआ है, अब इसको अगर आपको स्मॉल और लार्ज करना है, अभी आप देख रहे हैं काफी बड़ा हो गया है, तो आप या तो आप इसको क्लिक करें, ये जूम टू फिट पे. तो ये जो है जब आप इसको क्लिक करोगे तो ये आपके विंडो के हिसाब से फिट हो जाएगा. तो अभी आई थिंक यही इसकी फिट विंडो है. अदरवाइज आप जो है किसी भी ब्लैंक पोजीशन पे जाके अपना कर्सर जो है, जो कर्सर होता है माउस का, उस कर्सर को अगर आप घुमाएंगे तो ये छोटा और बड़ा होता जाता है, राइट. तो कनेक्शन से आपके कंप्लीट हो गए. अब मैं स्टार्ट सिमुलेशन टैब पे क्लिक करूंगा और जब मैं स्विच को प्रेस करूंगा यहाँ पे आप एक अजीब सा साउंड सुनेंगे. एक्चुअली पीजो का साउंड है, ये बजर नहीं है, बट हम इसको बजर मान सकते हैं क्योंकि टिंकरकैड में प्रॉपर बजर अवेलेबल नहीं है. तो आप देख सकते हैं कि इसी एक्सपेरिमेंट से हमने एक सिंपल सा बजर वाला एक्सपेरिमेंट किया. तो टिंकरकैड की सबसे खास बात है कि आप देख रहे हैं रियल टाइप की बैटरी आपको दिख रही है. रियल में जैसे स्विच दिखता है वैसे आपको दिख रहा है, रियल में जैसे बजर है वैसे दिख रहा है.
जबकि बाकी जो सिमुलेशन सॉफ्टवेयर हैं वो ऑब्वियसली वेबसाइट नहीं है, सॉफ्टवेयर में आपको कंपोनेंट दिखते हैं, सर्किट डायग्राम दिखता है, जो थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है समझने के लिए, इसलिए इस प्लेटफॉर्म पे काम करना काफी आसान है। सो अगेन आई गिव यू 2 मिनट्स, इस एक्सपेरिमेंट्स को आप कंप्लीट कर लीजिए और फिर हम आज के सेशन को यहीं पे कंप्लीट करेंगे। और प्लीज मुझे बताएं बजर डन करके कि कितने लोगों का ये एक्सपेरिमेंट कंप्लीट हो गया। चैट बॉक्स में मुझे बताएं बजर डन। ओके ऋतुम्बरा प्लीज फॉलो करें अच्छे से, तो मैं एक बार फिर से रिपीट करता हूँ। पॉजिटिव ऑफ द बैटरी हैज टू बी कनेक्टेड विथ टर्मिनल 2A. Positive of the battery has to be connected with terminal 2A. Terminal 1B has to be connected with positive of the buzzer. Terminal 1B has to be connected with the positive of the buzzer. Negative of the buzzer has to be connected with negative of the battery. Okay, negative of the buzzer has to be connected with negative of the battery. Hope ऋतुबरा अभी आपको क्लियर हो गया होगा। ऋतुबरा so 1 2 3 4 5 6 7 स्टूडेंट्स का हो चुका है। केवल 7 स्टूडेंट्स का हुआ है अभी तक, बाकी लोग भी करिए फटाफट। एट 9 सो अभी फर्स्ट सेशन में हमने देखा कि आउट ऑफ 40-50 पार्टिसिपेंट जितने भी थे उसमें से एटलीस्ट 10 to 15 पार्टिसिपेंट्स ने आज से ही सिमुलेशन स्टार्ट कर दिए हैं। बाकी लोग भी अगर इस वेबिनार का अच्छे से फायदा लेना चाह रहे हैं तो सभी लोग आज अपने घर पे जाएं। टिंकरकैड बहुत ही सिंपल है, ये दोनों एक्सपेरिमेंट सेल्फ ट्राई करके देखें ताकि नेक्स्ट सेशन में हम अच्छे से बहुत सारी लर्निंग कर सकें। सो फ्रॉम माय साइड इतना ही। आई थिंक ऑलरेडी हम 20 मिनट्स अबव गए हैं। जो डाउट्स और क्वेश्चंस होंगे वो हम कल नेक्स्ट सेशन में फर्स्ट 10 to 15 मिनट्स के लिए देख लेंगे और हर सेशन में हम ड्यूरिंग द सेशन डाउट्स करते रहेंगे और स्पेशल डाउट सेशन भी अपन रखेंगे एंड प्रैक्टिकल हमारे इसी तरह से चलेंगे। थ्योरी हमारी लिमिटेड रहेगी और ज्यादातर हम प्रैक्टिकल पे ही फोकस करेंगे। So I think this is done from my side. I think I should hand over to